اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سب موجود ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں کلاس کو، اور پہلے ہم جو ہیں بک کھول لیتے ہیں، بک پڑھتے ہیں۔ ہم بک 1 پڑھیں اور اس کا لیسن 5 ہے، اور پارٹ جو ہے وہ B پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے؟ تو میں شیئر کرتی ہوں، آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے لیسن 5، اور یہاں پہ ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کو۔ آج اس کو پڑھیں گے اور تھوڑا سا اعراب کے بارے میں جانیں گے، اعراب کیا ہوتا ہے وہ ہم بعد میں پوائنٹس ٹو ریممبر میں پڑھ لیں گے۔ تو کون آ رہا ہے؟ پہلے ہینڈ ریز کر لیں، جلدی جلدی سب آ جائیں، پڑھیے۔ سسٹر فہمیدہ جی جی میں آ جاتی ہوں۔ آ جائیے، بسم آپ اللہ ریڈی ہیں تو آ الرحمن جائیں، نہیں تو الرحیم۔ میں کسی اور کو بلا لیتی ہوں۔ ریڈی ہیں آپ؟ جی میں ریڈی ہوں۔ چلیے جی پڑھیں۔ اقرا، ریڈ۔ این بیت المدرسی وہو بعید، استاد کا گھر کہاں ہے؟ وہ دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خرج المدرس من غرفات المدیر، استاد ہیڈ ماسٹر کے کمرے سے باہر نکلا ہے۔ غرفہ، غرفہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ غرفہ ہے یہ، جی غرفہ۔ اچھا، یہ کس کو پرابلم ہو رہی ہے؟ حاذا بیت حامد وذالک بیت خالد، یہ گھر حامد کا ہے اور وہ گھر خالد کا ہے۔ ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر، عمار کا بیٹا طالب علم ہے اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے۔ بیت المدرس بعید و بیت التاجر قریب، استاد کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے۔ ھذا مفتاح السیارات این مفتاح البیت، یہ گاڑی کی چابی ہے اور گھر کی چابی کہاں ہے؟ من انت یا ولد، انا ابن عباس، تم کون ہو اے لڑکے؟ میں عباس کا بیٹا ہوں۔ وابن من ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ ہوا ابن خالد، خالد وہ خالد کا بیٹا ہے۔ اینا مسجد رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے؟ ہوا فی المدینہ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ چلے ہو گیا، بس کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ اچھا جی ایک منٹ مجھے دیجیے۔ چلے اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اقرا۔ اقرا تو ورب ہے نا، ٹھیک ہے، فعل ہے، اور کون سا فعل ہے یہ فہمیدہ؟ اقرا کون سا فعل ہے؟ فرزانہ آپ آ جائیے، کس کو تکلیف ہو رہی ہے آج پھر؟ یہ سسٹر یہ فعل امر ہے۔ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرزانہ آپ ہیں؟ جی میں فرزانہ۔
اچھا اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ لیسن جو ہے اس میں ہم تھوڑی سی گرامر بھی کر لیتے ہیں ابھی. تو آپ کو پتا ہے اینا کیا چیز ہے؟ اینا کسے کہتے ہیں؟ کوشچن کے لیے ہوتا ہے نا یہ، ہے نا؟ جی 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 اور یہ شروع میں ہی آتے جملے کے، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ خبر بنتے ہیں جملے میں. جملے میں کیا بنتے ہیں؟ خبر بنتے خبر. ہیں. جی آج پھر کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں. ہاں یہ ہے، لیکن میں اس کو کلاس میں نظر نہیں آ رہی. پھر وہی روشنی ہے آج پہ. ہاں روشنی ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہی مجھے کلاس میں. دیکھ رہی ہوں ان کو میں کیسے. یا آپ مور پہ جا کے ہائڈ اینوٹیشن کر دیں. آپ اوپر مور جہاں پہ آپ ریکارڈنگ دباتی ہے نا، ہاں اس کے نیچے آپشن ہوگا ہائڈ اینوٹیشن. اچھا ڈسیبل اینوٹیشن ایکچولی. اچھا آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں رضوانہ بات کر رہی ہوں. رضوانہ میں آپ کو دوں؟ دیکھو میں ٹرائی کرتی ہوں کیونکہ میں نے زوم کبھی یوز نہیں کیا، لیکن میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا کس طرح آپ اس کو ڈسیبل کر سکتی ہیں کہ دوسرا بندہ کوئی ڈرائنگ نہ بنائے. ہاں جی وعلیکم السلام. میم مجھے پتا ہے کہ کیسے اس کو آپ ہائڈ کر سکتے ہیں. ہاں کریں. میں آپ کون ہے؟ میم مشیل. ہاں مشل. آپ کو میں مشل تو مجھے نظر نہیں آ رہی یہاں کلاس میں. معیشہ ہیں، آپ ہی ہیں معیشہ خان؟ نو میم مشیل. اچھا مشل خان ہے. مشل اچھا خان. ہاں ایک منٹ. مشل ہیں ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو مشل بناتی ہوں. ایک منٹ. اگر مشل کر سکتی ہیں دونوں کو بنا دیتی ہوں. ہاں کوئی ویری مسئلہ گڈ. نہیں. اچھا جی یہ میرے پاس اچھا جہاں پہ آپ کہہ رہے ریکارڈ کرتے ہیں ہاں اس کے وہاں. نیچے ہی ہے جہاں آپ ریکارڈ دباتی ہے نا، اس کے اچھا دوسرے یا وہاں پہ. تیسرے نمبر پہ ڈسیبل اینوٹیشن. اچھا ہاں جی آ گیا. آگے نا اس کو کلک کر دیں گے تو ڈسیبل ہو جائے گا. تو ہم لوگ کوئی بھی ہے نا اینوٹیشن نہیں کر سکتے جو لکھتے ہیں نا اچھا گریفٹی. اچھا میں نے کیا تو ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ. اب اینوٹیشن کے لیے آئیکن نہیں آ رہا ہے. اچھا جی اچھا ماشاء اللہ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا آپ یہ چلا گیا دیکھیں، ورنہ وہ پہلے میں بھی کر سکتی تھی اگر میں وہ بنانا چاہتی نا. وہ چلا گیا ہے ماشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. لیکن چلے تھوڑے دیکھتے ہیں، ورنہ پھر میں آپ کو بنا دیتی ہوں. نہیں آپ نے کر دیا ہے اچھا ماشاءاللہ صحیح سے. ہو گیا. ویری نائس. یپ. اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو ابھی فرزانہ کون پڑھ رہا تھا ہمارے پاس؟ فرزانہ تھی مائک پہ. جی میں. اچھا جی فرزانہ. میں. تو یہ کوشچن کے لیے جی ہوتا ہے اور یہ خبر بن کے آتے ہیں جملے میں، ٹھیک ہے. جی جی اور ہمیشہ شروع میں آتے ہیں کیونکہ مجبوری ہے نا. کوشچن کے لیے جو بھی ورڈ آتے ہیں وہ شروع میں آتے ہیں، بٹ یہ خبر بنتے ہیں، ٹھیک ہے. جی. اور بیت المدرسی کیا بنے گا پھر؟ خبر. یہ بھی خبر بنے گا. دو خبریں تو نہیں ہو سکتی نا. اچھا یہ خبر ہے مبتدا. یہ مبتدا بنے گا نا پھر. اینا بیت المدرس. ہاں یہ مبتدا ہے بیت المدرس، اور سوال یہ ہے کہ کہاں ہے. اور یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. خبر پہلے آ گئی ہے، صحیح ہے. جی جی جی. اور مبتدا بعد میں. ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے مبتدا، ٹھیک ہے. اچھا ہوا کیا بنے گا اور بائدن کیا بنے گا؟ ہوا مبتدا ہوگا اور بائدن خبر ہوگی کہ وہ دور ہے. نمبر 2 اس میں دیکھ لیں مبتدا خبر کہاں ہے. نمبر 2 میں القرآن کتاب اللہ. القرآن مبتدا ہے اور کتاب اللہ خبر نہیں. ہاں یہ خبر ہے. اللہ کی کتاب قرآن ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اللہ. سیدھا قرآن جو ہے وہ خبر. سیدھا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، صحیح ہے. قرآن اللہ. اچھا اس کے بعد الکعبۃ بیت اللہ. الکعبۃ بیت اللہ. الکعبۃ مبتدا ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ خبر ہے. خبر ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد محمد کیا بنے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. تو محمد جو ہے وہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے رسول اللہ. اللہ کا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیوز دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی رسول ہے. کعبہ کے بارے میں نیوز دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. قرآن کے بارے میں نیوز دی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ
अल्लाह की किताब है, ठीक है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी इसमें ये सारे जुमले कौन से थे? जुमला इस्मिया थे, क्योंकि ये जी इस्म से स्टार्ट हो रहे थे। ऐना भी जी जी इस्म है, इस ऐना भी इस्म है, ठीक है ना, और हुआ भी जी इस्म है, ये सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं। वर्ब जो होता है वो तो इस तरह का होता है ना, तो जब नाउन से जुमला शुरू होता है तो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं, और उसमें उसके जी दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा और खबर, ठीक है ना। जी अच्छा जी। जी, अब यहाँ पर आपने पढ़ लिया ये, अब हम नीचे देखते हैं नंबर 5 में आप पढ़िए। अच्छा, इसमें एक और बात कर लेते हैं, अगर किसी लफ्ज के ऊपर दम्मा आ जाए तो उस इस्म की कौन सी हालत होती है, पता है आपको फरजाना? वो फाइल तो यहाँ पे नहीं कहेंगे, अच्छा इसम है फाइल नहीं तो कहेंगे ना, मुब्तदा ही कहेंगे नहीं ना। नहीं नहीं sorry, हालत कौन सी होती है? हालत मुअन्नस। रफई हालत होती है, रफई हालत। ये आज मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा जी जैसे जी हम जी लोग देखें, जिस तरह से हम लोग अपने लिबास चेंज करते हैं ना, जी डिफरेंट ओकेजन के ऊपर हम लोग अपना लिबास चेंज करते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, रात को सोते हैं, पार्टी में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हम डिफरेंट जी अपने लिबास पहनते हैं। बिल्कुल इसी तरह नाउन भी जो है वो डिफरेंट लिबास पहनता है, अपना लिबास बदली करता है, ठीक है। जी जी अब ये लिबास जो होता है ये कैसे पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? वो उसके उसने बदली किया है अभी, वो उसके लास्ट लेटर से पता चलता है। आप जी देखते हैं लास्ट लेटर की हरकत चेंज होती रहती है, कभी मोहम्मद दुन होता है, कभी मोहम्मद दन होता है, कभी मोहम्मद दिन होता है ना। जी जी देखा है ना, कभी जी अल्लाह वो होता है, कभी अल्लाह हा होता है, कभी अल्लाह ही होता है ना। जी बिल्कुल। तो ये जो लास्ट लेटर है इसके ऊपर जो ये उसका लिबास है, और वो चेंज करता रहता है जरूरत के अच्छा मुताबिक, जरूरत के मुताबिक, जैसे हम चेंज करते हैं। अच्छा, हम जिस लिबास में होते हैं हमें पता, हमारे उस लिबास से पता चल जाता है कि हम इस वक्त किस हालत में हैं, सोने की हालत हाँ में हमें, या स्कूल जाने जी की हालत में, या ऑफिस जाने की, कोट टाई पैंट जी पहनी हुई, जो भी हमारा लिबास है, मर्द का औरत का अलग अलग होता है। तो उस लिबास से हमारा पता चलता है कि अच्छा अभी अब हमने अबाया पहना है तो हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो रहे हैं, या मस्जिद जा रहे हैं, टोपी पहनी है। तो इस तरह से जिस तरह इंसान का पता चलता है ना, मर्द हो या औरत हो, कि वो उसका लिबास क्या है, उसके लिबास से हमें अंदाजा होता है कि हमारी कौन सी हालत है इस वक्त, हम किस हालत में हैं। जी, बिल्कुल सही इसी तरह नाउन का भी उसके लास्ट लेटर की हरकत से पता चलता है कि वो किस हालत में है। तो नाउन की जी 3 हालतें होती हैं, ठीक है ना। एक हालत जी उसकी होती है दम्मे वाली, चाहे एक जी दम्मा हो चाहे 2 दम्मे हो, जैसे यहाँ पर एक सही दम्मा आ रहा है ना, जी यहाँ पे 2 दम्मे किताब आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दम्मे वाली हालत होगी इसको हम कहते हैं कि ये इस वक्त इसम जो है वो रफई हालत में है, अच्छा ठीक है रफ़ई हालत जी रफई जी हालत में, प्लीज हम्म, रफई हालत में, ठीक है। जी जी रफई जी हालत में दम्मा जब होगा, एक दम्मा या 2 दम्मे होंगे। हाँ जी 2 दम्मे तो सही वैसे ही आते हैं, लेकिन एक दम्मा किसी वजह से आ रहा होता है, या तो अलिफ लाम सही लग जाता है तो एक दम्मा आता है, या वो मुदाफ बन रहा होता है तो 2 दम्मे नहीं लगा सकते, एक दम्मा लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह वो मरियम मुंह जैसे औरतों के नाम होते हैं तो उस पर एक दम्मा, तो वो किसी एक वजह से लगता है, किसी वजह से लगता है। बहरहाल रफई सही हालत जो होती है वो 2 दम्मे से भी हो सकती है और एक दम्मे से भी हो सकती है। इसको इंग्लिश जी में नॉमिनेटिव फॉर्म कहते हैं, नॉमिनेटिव फॉर्म, नाउन की नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव रफई हालत। जी फिर दूसरी हालत जो होती है वो नस्बी हालत होती है। नस्बी हालत का कैसे पता चलता है? लास्ट लेटर से ही पता चलता है, लेकिन वो जो है उसके ऊपर अगर एक जबर आ रही है, जी नाउन की बात कर रही हूँ मैं फेल की बात नहीं कर रही, अगर जी नाउन बिल्कुल के सही ऊपर एक जबर आ रही है या 2 जबर आ रहे हैं तो वो उसकी क्या होगी? नस्बी हालत होगी, अच्छा ठीक है नस्बी ना। जैसे अल्लाह हा होता है, अब अल्लाह हा पे एक जबर आ रही है ना, और किताब जी जी बन होता है, ठीक है, तो ये नस्बी हालत होती है। कभी किताब उन होता है, कभी मोहम्मद उन होता है, कभी मोहम्मद दन, है ना, होता है जी ना मोहम्मद दन, तो जी ये नस्बी हालत होती है फिर जबर वाली, ठीक है, एक सही जबर हो या 2 जबर है। फिर तीसरी हालत जो है वो जरी हालत है, जी इसको एक्यूजेटिव फॉर्म भी कहते हैं, इसको नॉमिनेटिव फॉर्म, इसको एक्यूजेटिव फॉर्म। जरी हालत को क्या कहते हैं? जेनिटिव फॉर्म। जरी ओके हालत जेनेट जर से होती है, 2 जेर हो या 1 जेर हो, तो ये जरी हालत होती है। अब आप इसको नोट कर लें कॉपी में,
جی میں لکھتی جا رہی ہوں. हाँ, आप लिखिए रफ़ई हालत 2 दम्मे या 1 दम्मा. आप पानी पी लें. जी पी लिया मैंने. अच्छा, जी, रफ़ई हालत जब मैं पूछूंगी अभी आपसे, ये रफ़ई हालत जैसे मैंने आपसे कुरान में अभी पूछा था ना कि मोहम्मद जी. दुन कौन सी हालत है, तो मोहम्मद हाँ. दुन का लास्ट लेटर की हरकत से पता चलेगा कि ये रफ़ई हालत है. ये पीछे वाली हरकत चेंज नहीं होती है. मोहम्मद की पीछे वाली हरकत जो होती है ये हमेशा वही रहती हैं, वो जी. चेंज नहीं होती. आप देखें मोहम्मद दुन चेंज होगा, मोहम्मद पीछे की हरकत चेंज नहीं होंगी. ये जो जी, एराब होता है ना, जो एराब होता है ना, इसको लास्ट लेटर की हरकत को एराब कहते हैं. जी ये सही. चेंज होता है, ये चेंज होता है, एराब, जी एराब, ठीक है ना, ये जी. चेंज होता है. और ये जो पीछे होती है इनको हरकत कहते हैं, ये चेंज नहीं होती, ये वैसी सेम एज इट रहती हैं. सही. मसलन किताब उन है ना, तो किताब उन में जी. आपका क्या होता है कि ये आपका किताब उन रफ़ई हालत है, किताबन, किताबन. अब ये 2 ज़बर आ गए, ठीक है, तो ये नस्बी जी. हालत हो गया एक्यूजेटिव. आप देखें कीता, ये वाली चेंज नहीं हुई, इनको हरकत कहते हैं जो चेंज नहीं होती, जी. ठीक है ना, ये जी. हरकत होती हैं. और ये जो आखिर में होता है जो चेंज हो रहा है, लिबास, ये बन हो गया बुन से, इसको कहते हैं, ये आपका हाँ, इसको नस्बी हालत कहते हैं, ये एराब कहते हैं, ठीक है, और ये नस्बी हालत है. अच्छा, अब तीसरी हालत कौन सी होगी बताइए आप. किताबुन, किताबन, किताब, किताबिन बिन, और जरी हालत होगी. हाँ, 3 ही हालतें होती हैं, या रफा होता है, या नसब होता है, या जर होता है, और कोई हालत नहीं होती. जी. ठीक है, सही. 3 ही हालतें होती हैं. नौन की इससे बाहर कोई जो भी आप नौन उठाएंगे ना, इन 3 हालतों में से कोई एक हालत में होगा, या रफई सही. हालत में होगा, या नस्बी में होगा, या जरी में होगा. जी ठीक है, सही. तो बिल्कुल बिल्कुल. ये जज़ाकल्लाह खैर. ठीक है ना, कि समझ आ गया आप लोग. अब मैं पूछूंगी जी मुझे सवाल. समझ. मोहम्मद उन रफ़ई बिल्कुल. हालत में रसूलु, रसूलु जो है इसके ऊपर एक दम्मा है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है, इस पे तनवीन नहीं लगा सकते. सही. ठीक है ना, इसके ऊपर एक दम्मा आ रहा है, तो ये भी रफ़ई हालत में है. ये असल में जी. ये रसूलुन था, लेकिन किसी रीजन हाँ. की वजह से एक पेश लाना पड़ा. इसी तरह अल्लाह को अच्छा. देखें, ये रफ़ई हालत है, ठीक है. जी जी और जी. ये क्या है, सही. सल्ला, ये माजी फेल है, ये वर्ब है. चलो. ये इसके ऊपर नाउन की अलामत क्या होती है. नाउन को अगर आप पहचानने जाएं तो कैसे पहचानेंगे, उसके ऊपर या तो तनवीन होती है या अलिफ लाम होता है. या इस्लाम होती है. ये 2 चीजें होंगी ना किसी के ऊपर, तो हम कहेंगे ये नाउन है. जी ठीक है, सही. अच्छा जी. अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह नंबर 5 पे. नंबर 5 है खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीर. जी, खरजत मुदर्रिस मिन, ये जो कमरे से निकल के गए हैं, ये प्रिंसिपल है. नहीं अभी गए हैं ऐसा जो नहीं. अभी नहीं, खरजल मुदरिसु क्या मतलब होगा. खरजल मुदरिसु, खरज फेल है, मुदरिसु क्या है. ये स्कूल से. नहीं, स्कूल है ही नहीं यहाँ पे. ये मुदरिस टीचर को बोलते हैं. अच्छा ठीक है. हाँ से कमरा मुदरिस है जो होता यहाँ. है मुदरिसा, और मुदरिस जो होता है टीचर होता है. जी. मुदरिसा अगर गोल ता लगा देंगे तो लेडी टीचर बन जाएगी, ठीक है. और मुदरिस जो होता है अच्छा. फीमेल. तो ये आपका फाइल है, ये फाइल है, ठीक है. क्योंकि ये जी. फेल है तो ये फाइल है. आप इसको मुब्तदा और इसको खबर नहीं कह सकते अभी, क्योंकि मुब्तदा और हाँ. खबर जो होते हैं वो जुमला क्योंकि ये इस्मिया में होते हैं. अभी ये जुमला फेल से फेलिया शुरू हो रहा शुरू हो गया. तो जुमला है. जी फेलिया जी. में सबसे पहले फेल होता है, फिर फाइल होता है, करने वाला डूअर होता है. तो आप अच्छा इसको, फाइल. इसके ऊपर जो दम्मा आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फाइल बन रहा है. इस वक्त वो फाइली हालत में है, फाइल बन रहा है, डूअर सही. बन रहा है. जी अच्छा, जी जी. तो खरजा ये फेल है, इसके ऊपर कोई तनवीन और अलिफ लाम नहीं आ रहा है, इसलिए ये फेल है. अल मुदरिसु फाइल है. मिनल गुरफती, मिनल गुरफती क्या बनेगा, मिन गुरफती क्या बनेगा. मिन गुरफत, कमरे से निकल रहा है, तो ये मिन गुरफती कौन सा मुरक्कब बन रहा है, ये मिन और गुरफती. ये मुरक्कब जारी. गुड, मुरक्कब जारी बन रहा है. फिर गुरफतिल मुदीरी, मिन को छोड़ देंगे अभी. गुरफतिल मुदीरी कौन सा मुरक्कब बन रहा है, ये मुरक्कब इजाफी. मुरक्कब इजाफी बन रहा है. ठीक है, तो अब ये पूरा
शुरू में मिन हो तो आगे कुछ भी हो सारा वो मुरक्कब जारी बन जाता है। शुरू में मिन आ रहा हो ना, हरफ जार आ रहा हो, तो जो जी, भी जी, बाद में सही। होगा उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ 3+2 है ना ब्रैकेट में, अब जी, ये जी। अंदर 3+2 है लेकिन बाहर 0 है, ठीक है। हाँ, तो अब जवाब क्या होगा? हाँ, तो 0 होगा। 0 होगा। 5 मल्टीप्लाई 0 जी। 0 हो जाएगा। इसी तरह जी। मिन अगर हरफ जर अगर कोई भी बाहर आ रहा है और आगे कुछ भी मुरक्कब आ रहा है, मुरक्कब इजाफी आ रहा है, तौसीफी आ रहा है, कोई भी मुरक्कब इशारी आ रहा है, उसको मिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मुरक्कब जारी बन जाएगा, वो सब मजरूर हो जाएगा। सब अच्छा, ठीक है। मजरूर पूरा। उसको फिर हम क्या देते हैं कि ये मुतल्लिक बन गया। अभी मुतल्लिक, अब उस मुतल्लिक को अभी आप छोड़ दें, अभी हम ये देखते हैं कि खरजल मुदरिसु कौन निकला है? टीचर निकला। टीचर निकला कहाँ से निकला? मुदीर के कमरे से, मुदीर के कमरे से। हाँ, अच्छा, तो अच्छा, ठीक। मिन गुरफतिल मुदीरी, मुदीर के कमरे से निकला। और कौन निकला? हम्म, टीचर निकला, हम्म, ठीक है ना। सही। तो इंग्लिश में क्या हम्म, कहेंगे? द टीचर एग्जिटेड या लेफ्ट कहेंगे। द टीचर लेफ्ट फ्रॉम, मिन का मतलब फ्रॉम जी, होता है, फ्रॉम प्रिंसिपल्स रूम, है टीचर्स रूम, सही। ठीक है। जी, तो जी, प्रिंसिपल जी, भी कह सही। सकते हैं। तो इस तरह तर्जमा करते हैं। और उसके पार्ट क्या होते हैं? एक फेल होता है, एक फाइल होता है, और फिर जो मिन के बाद आता है वो आपका मुताल्लिक बन जाता है। वो डिटेल होती है जुमले की। यानी टीचर निकला है लेकिन जुमला अधूरा है ना, कहाँ से निकला है? वो मुदीर के कमरे से निकला हाँ, है, सही। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना। अब उसकी थोड़ी जी, जी, डिटेल बिल्कुल। बता दी ना। अगर टीचर जी। टीचर लेफ्ट है ना, टीचर लेफ्ट भी जुमला कंप्लीट है, टीचर चला गया, टीचर इज लेफ्ट, हम्म, ठीक है। हम्म, बट थोड़ी डिटेल बताई कि कहाँ से वो निकला है, कहाँ से निकला है, कहाँ से वो एग्जिट हुआ है। तो वो मुदीर जी, के बिल्कुल कमरे से एग्जिट हुआ है। अच्छा, अब आगे सही। पढ़िए। आगे पढ़िए। हाजा बैतु हामिदिन वजालिका बैतु खालिद खालिदिन। इसमें दो जुमले आ रहे हैं, दो जुमले आ रहे हैं, इसमें 2 जुमले। ठीक है ना। वाव से अब पहला पहले वाला कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया या फेलिया है? वो जुमला इस्मिया होगा। हाँ, हाजा। फेल से तो नहीं शुरू हाँ, हो रहा ना, नहीं, फेल से तो नहीं। नहीं शुरू हो रहा ना, तो जुमला जी, इस्मिया जी, होगा। इस्मिया अच्छा, है। अब जुमला इस्मिया के डिफरेंट पार्ट होते हैं, उसमें तो फेल फाइल नहीं होता ना। उसमें क्या जी, होता है? उसमें क्या होता है? जुमला इस्मिया के दो पार्ट। इस्मिया में मुब्तदा और खबर। हाँ, तो मुब्तदा क्या होगा? मुब्तदा हाजा है, हाँ हाँ और बैतु हामिदिन हामिद के घर। हाँ हामिद हाँ, के घर। हामिद हाँ, का घर, हामिद का घर, हामिद का घर। ये ठीक है ना। हामिद का घर है। हाँ, तो ये हामिद का घर है, ठीक है। इसमें हाजा ये इसमें इशारा है, ठीक है ना? जी, ये आप बना लेंगे मुब्तदा, और बैतु हामिदिन क्या, ये आपकी खबर है। आप इसको बैतु को अलग नहीं कर सकते, इधर नहीं जोड़ सकते, वो जी। इसका पार्ट है, हाँ, इसका हाँ, मुदाफ है, तो इसके साथ ही मिलाएंगे, ठीक है। तो हाजा को सही। अलग कर दें, सही है। इसी तरह यहाँ जी, पर जी। वजाली का बैतु खालिदिन, और वो जालिका का मतलब वो, वो, जी, वो खालिद का घर है। खालिद का घर है। खालिद के घर नहीं बोलेंगे क्योंकि एक ही घर है, खालिद का घर है। जी, ठीक है ना। जी, अच्छा जी, अब जी, आगे कर लें। जी, बहुत शुक्रिया। इब्नु अम्मारिन तालिबुन वब्नु यासिरिन ताजिरुन। अब इसको करें। अम्मार इब्नु अम्मार तालिब, अम्मार का बेटा तालिब इल्म है, और वब्नु यासिरिन ताजिरिन, और यासिर ताजिर का बेटा है। यासिर, और यासिर का बेटा, जी, यासिर का बेटा। यासिरिन, यासिर का बेटा। जी, जी, जी। मुरक्कब यासिर का इजाफी है ना, तो बेटा। मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा या उल्टा करते हैं, यासिर का बेटा, ठीक है। अम्मार जी, का बेटा, यासिर का जी, बेटा क्या है? ताजिर है। ताजिर है। अब इसमें मुब्तदा और खबर बताएं नहीं, क्योंकि ये अम्मार जुमले का तालिब इल्म है। अम्मार का बेटा तालिब इल्म है, और यासिर का बेटा ताजिर है। मुब्तदा खबर क्या होगा इसमें? इसमें इब्नु अम्मार तालिबुन, मुब्तदा इब्ने अम्मार मुब्तदा है, और खबर तालिब इल्म। तालिबुन खबर वो बन गई, ठीक है, खबर जी, बन जी, जाएगी। जी, और इब्नु सही। यासिरिन,
वब्नु यासिरिन, और यासिर का बेटा जो है वो मुब्तदा है और ताजिरुन खबर है। खबर है। यासिर के बेटे के बारे में खबर दी जा रही है आगे, ताजिरुन, वो ताजिर है, ठीक है ना? जी जी। सही है। नंबर 8 है बैतुल मुदर्रिसी बईदुन व बैतुल ताजिरी करीबुन। बैत मुदर्रिसी बईदुन, टीचर का घर करीब है और ताजिर, टीचर का घर दूर है और ताजिर का घर करीब है। इनका आपस में मिलाना तर्जुमा करना, ताजिर का घर उल्टा तर्जुमा करना, रिवर्स गियर लगाएंगे, ठीक है? करीबुन, सही। नंबर 9 हाजा मिफ्ताहु सय्यारती ऐना मिफ्ताहुल बैती। हाजा मिफ्ताहु सय्यारती, मिफ्ताहु सय्यारती कार हो गया। दरवाजा, ये कार का दरवाजा है या चाबी, सॉरी, ये कार की चाबी है और इसकी घर की चाबी कहाँ है? वेरी गुड। अब इसमें जो है ये मुब्तदा बनेगा और ऐना के बारे में बताया कि ये खबर बनेगी, ठीक है ना? जी। कभी कभी मजबूरी की हालत में खबर जो होती है वो पहले आती है, क्योंकि ऐना को बाद में नहीं ला सकते, हमने क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? जी। तो ऐना को, खबर को हम शुरू में ले आए। तो ये क्वेश्चन वाले जितने भी वर्ड होंगे इनको हमेशा खबर बनाना है, ठीक है? उनको मुब्तदा नहीं बना सकते, उनमें पावर नहीं है मुब्तदा बनने की। जी। अच्छा, नंबर 10 मन अंता या वलदु, मन अंता, अना इब्नु अब्बासिन। मन अंता या वलदु, ए लड़के आप कहाँ से हैं? मन अंता, who are you? अच्छा, who are you? मिन ऐना अंता नहीं है, मिन ऐना अंता नहीं है, मन अंता है। मन अंता या वलदु, ए लड़के आप कौन हैं? अना इब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ। अच्छा, ठीक है। मन जो है वो आपका, इसका मीनिंग क्या होगा मन का? कौन? हाँ, फर्क करना है। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, से। जी जी। और जी। मन का मतलब होता है कौन, हु, ठीक है ना? हु आर यू। अंता, अंता क्या है? प्रोनाउन है। अना भी प्रोनाउन है। और ये कौन से प्रोनाउन है? प्रोनाउन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो अटैच होके आ रहे होते हैं, और एक जो अभी आपको अटैच नहीं पढ़ा रहे, अभी आपको सिर्फ डिटैच पढ़ा रहे हैं। अंता, अना, हुआ, ठीक है? और ये शुरू में आए तो मुब्तदा बन जाते हैं। अना, अना मुब्तदा बन गया, ठीक है ना? जी जी। और यहाँ पे हुआ जो है ये मुब्तदा बन रहा है क्योंकि शुरू में आ रहे हैं ना। जी, सही है। तो मन अंता, क्वेश्चन वाले को हमेशा हम खबर बनाते हैं, क्वेश्चन वाले लफ्ज को हमेशा हम खबर बनाते हैं, और जो उसके बाद होता है उसको हम मुब्तदा बनाते हैं। अच्छा, सही। ऐना को आपने क्या बनाया? ऐना को आपने खबर बनाया था ना यहाँ। तो जो क्वेश्चन वाला होगा, ये भी क्वेश्चन वाला है ना, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। सही सही। जी ये भी WH फैमिली से है ना, हु, वेयर, है ना? तो जो WH फैमिली से आते हैं वो शुरू में आए तो खबर बनते हैं, उनको मुब्तदा नहीं बना सकते, ठीक है? और अंता क्या है? ये आपका मुब्तदा बनेगा। जब ये खबर बन गया तो इसको भी खबर नहीं बना सकते, फिर इसको मुब्तदा बनाएंगे, ठीक है? या वलदु, या हरफ निदा है, पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, या अल्लाह, है ना? और जिसको पुकारा जाता है आगे वो वलद है, ठीक है? उसको पुकारा जा रहा है। जी जी जी। तो इसको क्या कहते हैं जिसको पुकारा जाता है? ये तो हरफ निदा है, इसको पुकारने का हरफ कहते हैं, हरफ निदा। मुनादी नहीं, मुनादी नहीं, हरफ निदा होता है या, ठीक है? और जिसको पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह ताला को पुकारा जा रहा है ना, तो उसको कहते हैं मुनादा। मुनादा, अच्छा। जिसको पुकारा जाता है। अल्लाह मुनादी नहीं है, अल्लाह मुनादी नहीं है, अल्लाह ताला जो है ये मुनादा है। अच्छा, उसकी स्पेलिंग में मीम, नून, अलीफ, दाल, दाल पे जबर आएगी ना, मुनादा। और मुनादी जो आपने बोला है जेर के साथ,
वो जी। मुनादी कौन होता है? 3 जो चीजें, आवाज दे रहा जो आवाज लगा रहा है, जो पुकार रहा है, जो दुआ कर रहा है, वो मुनादी है। है जी, सही। तो आपने वलदुन को मुनादी नहीं कहना, वो मुनादा है। मुनादा है। जो या के बाद आएगा वो जबर के साथ मुनादा, और मुनादी वो जो उसको पुकार रहा है, जो उससे सवाल कर रहा है, मन अंता या वलदु, जो उससे जी। सवाल कर रहे हैं ना पुकार के कि ए लड़के तू कौन है जी जी जी। ना। और दूसरी हाँ, बात हाँ। यहाँ पे ये याद रखनी है कि वलदुन नहीं आएगा, या वलदुन नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा? हमेशा या वलदु कहेगा। या वलदु। और ये कौन सी हालत है? ये नाउन है, इस पे तनवीन आ रही है। ये जो है आपका नाउन है, वर्ब नहीं है। तो ये जो है कौन सी हालत है? दमा देख रही है ना आप? कौन सी हालत है? रफ़ई, रफ़ई हालत, रफ़ई हाल। जी ठीक जी। है। जी अन्नब्नु बिल्कुल। अब्बासिन, अब्बासिन की कौन सी हालत है? अब्बासिन जर मजरूर हालत है अब्बासिन। आप जरी कह लेना, मैंने 3 हालतें जरी। बताई हैं, देखें, रफ़ई, हाँ नहीं जरी कहेंगे। नस्बी और जरी, ठीक है जरी। ना। तो जब मैं हालत जी पूछती हूँ तो आपने रफ़ई, नस्बी, जरी बतानी है, सही। ठीक है ना। तो वो जी जरी बिल्कुल। हालत है। अभी आप इतना ही याद रखें, मजरूर वजरूर तो ठीक। वो मजरूर हो जाता है ना किसी वजह से, वो ये मुदाफ है, ये मुदाफिल है, तो वो मजरूर जी हो जी जी। जाता है, उसको ज़ेर आ जाती है। पहले तो अब्बासुन होता है ना, हाँ अब्बास हाँ जरी है हाल। ना, रफ़ई हालत में होता है, जी जी लेकिन जब वो मुदाफिल बनता है तो वो मजरूर हो जाता है। वो एक अलग स्टोरी है, उसको रहने दें। आप अभी रफ़ई, मैम नस्बी और जरी हालत है। जी बोलिए। मैम ये एक बार और प्लीज बता दीजिए, ये जो आपने ये जरई और ये अच्छा, वाली आप लेट इसके हैं ऊपर क्लास वाली। में? आप क्लास में लेट है एज यूजुअल, है ना। जी मैम। हाँ, तो फिर अभी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगी। अच्छा मैम, आपने बता रखा है ये मैंने वाला। बता रखा है, सब बता रखा है ऊपर, बहुत डिटेल से बताया है। तो उसको मैंने ठीक है इंग्लिश मैम, में भी ठीक है। बताया, उर्दू में भी बताया, तो जी आप उसको मैम, सुनिएगा, जज़ाकल्लाह। ठीक है। ठीक है वही है, मैम, शुक्रिया। क्योंकि फिर मैं लेसन नहीं कंप्लीट कर। अभी जो मैंने बताया हरफ निदा का पता लगा आपको? सना, हरफ निदा क्या होता है? जिससे पुकारते हैं, वो ये हरफ है। इस जो होता है ना कलिमा की 3 किस्में होती है ना। जो वर्ड होता है वो 3 तरह का होता है। कितनी किस्में होती है कलिमे की? 3 किस्में होती हैं। या तो वो इस्म होता है, यहाँ पे जितने भी अल्फाज हैं, हर लफ्ज को आप उठा के देखें तो वो इन 3 हालतों में होगा। या तो वो इस्म होगा, या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। तो या क्या है? वो इस कैटेगरी में आएगा। या किस में आएगा? हर्फ में। हर्फ में आएगा। हर्फ। अच्छा, हर्फ आएगा। खराजा किस में आएगा? फेल में आएगा, ठीक है ना। जी और जी मैम जी फेल तो वर्ब हो गया ना, ना, जी। फेल और वर्ब इसम है, नाउन हो गया। इसम नाउन हो गया। इसम अब नाउन। नाउन में क्या क्या आ सकता है? जैसे अब्बासुन, अब्बासिन, अब्बासन, अल्लाह, ठीक है। मैम नेम, अम्मार, प्लेस, एनिमल, हाँ, जितने भी नाम थिंग। है, ठीक है। नेम, प्लेस, अज- एनिमल, थिंग। अच्छा, इस ज़मायर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये वर्ब तो नहीं होते, हरफ भी नहीं होते, ठीक है। जी जी। तो ये मैम जितने ये भी ही शी। अल्फाज हैं, जितने भी अल्फाज हैं, मिन क्या है? हर्फ की कैटेगरी में। अगर आपको बोलेंगे इनको कैटेगराइज करें तो इनको कैसे करेंगे? 3 खाने बनाएंगे, इसम, फेल और हर्फ। और जो इसम है मिफ्ताहुन या मिफ्ताहु, ये इसम है, ठीक है। अस्सयारा इसम है, आप इसको फेल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हाजा भी इसम जी है, मैम, जी ठीक है, क्योंकि मुब्तदा बन रहा है जी ना, तो उसको आप जी। यहाँ डालेंगे। फेल जो होगा खराजा, ज़हाबा, जलसा, ये फेल होंगे, ठीक है। जैसे इकरा, जी इकरा, मैम। वक्तुब, है ना, उक्तुब, जी तो जी ये सब फेल जी। होंगे। हर्फ क्या होंगे? ये छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे या मिन, हो गया, मन, तो हाँ, या, हाँ, फी, हर्फ जर, अला, हाँ जी, फी, बिल्कुल अला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मैम ये जो हुआ हिया होते हैं, ये इसम में आ जाएंगे। ये इसम में आएंगे। इसम इशारा भी इसम, इसलिए तो उनको इसम ज़मीर कहते हैं ना, प्रोनाउंस कहते जी हैं, वो मैम। इसम की कैटेगरी जी में जी, आते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। मैम और प्रोनाउन को इसम ज़मीर बोलते हैं। इसम ज़मीर बोलते हैं, क्योंकि अब देखें प्रो अच्छा। नाउन, उसमें भी आपका नाउन आ रहा है ना, तो वो भी इसम की जी जी जी। कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अच्छा इसी अच्छा तरह अच्छा, इसम इशारा ठीक है मैम। बोलते हैं, इसम इशारा बोलते हैं ना आप, उसको जी आप क्या बोलते हैं? वो भी इसम की कैटेगरी में आ गया। इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल। इसम मौसूल क्या होता है? जैसे अल्लाह जी, अल्लाह जीना, ये भी इसम की कैटेगरी में आएंगे, फेल की कैटेगरी जी में नहीं मैम। आएंगे। इसम मैम मौसूल इस बोलते हैं। इसम मौसूल में मैम सिर्फ यही आता है या इसके अलावा और कुछ भी आता है?
الذی. ضمائر آتے ہیں, اشارہ آتا ہے, جو جو آتا جائے گا, جیسے کسی کا نام ہو گیا, مریم اچھا ہو گیا. ابھی تو میم ہم نے اس- الذی ہی سیکھا ہے نا, ہو اور وچ اس کا میننگ ہوتا ہے. ہاں جی, بس بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. اور یہ حرف ندا ہے, یہ یا ہے, اس کو آپ اس کیٹیگری میں ڈالیں گی. منادا کو کس میں ڈالیں گی, یہ یاد میم رکھیں. جسے پکارا جاتا ہے. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, جسے پکارا جاتا ہے. یہ کس کیٹیگری میں آئے گا, اسم میں ڈالوں یا فعل میں میم ڈالوں یا حرف حرف میں ڈالوں؟ اس کو بھی حرف میں ڈال دوں. منادی. منادا یہاں پہ ولد ہے نا, اس کو پکارا جا رہا ہے نا. اچھا میم یہ تو اسم ہو جائے گا. یہ تو اسم ہے نا, منادا جو ہوگا نا, اس کو اسم کے, اس جی لفظ کو بھی اسم کی کیٹیگری میں ڈالیں گے, اور اس کو بھی, اس کے یا کے بعد جو آئے گا وہ بھی ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, اسم کی کیٹیگری میں. یا اللہ ہے نا, تو جو بھی جی ہم جی اس کو جی جی پکارتے جی ہیں اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں نا, یا جی میم. عبداللہ, تو اس طرح سے وہ اسم کی کیٹیگری میں. یا کے بعد جو بھی آئے گا وہ اسم کی کیٹیگری میں جائے گا. اور میم یا حرف ندا ہو جائے گا. یا حرف ندا ہے, اور یہ منادا ہے, اور پکارنے والا کون ہے, جو یہاں پہ سوال کر رہا ہے, اور اس کا پتہ نہیں ہے اچھا ہم کو, ٹھیک ہے نا, وہ سوال کر رہا ہے, ہمیں نہیں میم پتا کون کرے. میم منادا وہ ہوتا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے. فرض کریں کہ جی یہاں پہ, ہاں جی, منادا وہ ہوتا ہے جو یا کے بعد آتا ہے, اچھا 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 جو ٹھیک ہے یا میم. ہاں, اور جو جیسے یہاں پہ ٹیچر پکار رہا ہے نا, ٹیچر بچے سے جی پوچھا جی من جی انت یا ولد, جی من جی انت یا ولد, آپ کون ہے, وہ لڑکے, وہ بوائے, جی ٹھیک ہے نا, جی. تو آپ کون ہے, تو ٹیچر جو ہے وہ منادی ہے. اچھا 3 باتیں یاد رکھیں, ہم یا اللہ کہتے ہیں نا, ہم جی پکارتے ہیں نا, میم. تو ہم منادی جی ہیں, ہم منادی ہیں. اچھا یا حرف جی ندا ہے, اور اللہ کیا ہیں, جی. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منادہ ہیں, ان کو پکارا جا رہا ہے. منادا. تو اچھا آئندہ منادی اور ٹھیک ہے منادہ میں غلطی نہیں کرنی, بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے یہ, اگر میم. آپ اللہ بہت کو اچھا منادی کہہ دیتے کنسپٹ کلیئر ہو گیا میم ہیں. یہ کون سی, والا. ہاں سبحان اللہ. جی الحمدللہ. جی تو یہ شکر. چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی, یہ اگر آپ سمجھ لیں گے آپ کو مزہ آئے گا پھر. اور یہ جی لفظ میم. قرآن مجید میں آتا ہے, میں آپ کو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھے تو وہاں پر اچھا منادہ کا لفظ, منادی کا لفظ آتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے منادی. عمران کا منادی آخری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منادی کا لفظ آتا ہے. تو ایک منادی اچھا جو تھا وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے, ایمان لاؤ, اور ہم نے کیا کیا, ایمان لے آئے. آج میں اسی کی تفسیر کرنے والی ہوں, سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی. تو اس میں اچھا ہاں, تو منادی, اس میں منادی کا لفظ آتا ہے, ٹھیک ہے. منادی کون ہے, آواز لگانے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی نا, کہ کس کے لیے لگائی تھی, لوگوں کو آواز دی تھی, منادی تھی, پکارنے والے تھے, ٹھیک ہے. جی 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 اور جی کس کو پکار جی رہے تھے, ہمیں پکار رہے تھے, ایمان جی. لاؤ, ایمان لے آؤ. اور ہم نے کیا کیا, ان کی آواز سنی تو ہم نے ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد منادی کا لفظ جو ہے وہ تمام, آج جو بھی پکارتا ہے اللہ کے راستے میں, جو بھی داعی دین ہے, جو بھی دعوت دیتا ہے, اس سب کو منادی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منادی تھے, دعوت دین دینے والے تھے, پکارنے والے تھے لوگوں کو, اے لوگوں بچ جاؤ, بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ, جہنم کی آگ سے. خود کو بچا لو, اپنے بچوں کو بچا لو, اپنے گھر والوں کو بچا لے. تو وہ آواز لگاتے تھے, کس کے لیے, ایمان لے آؤ. وہ پکارتے تھے کس کو, لوگوں کو پکارتے تھے, تو وہ منادی ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ اچھا پکاریں. اور اس وقت جو ہے جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے وہ ہم لوگ ہیں نا, یا اس وقت کے صحابہ تھے, تو وہ منادہ تھے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اللہ کو جی میم. پکارتے ہیں تو ہم منادی ہیں اور اللہ منادہ ہے. تو منادی ہوتا ہے پکارنے والا, ٹھیک ہے. تو رسول کیا ہے, منادی ہے, اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اللہ ہے, یا اللہ, یا اللہ. یا پھر لوگوں کو پکارتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ مناتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز ہے, اس کو آسانی سے سمجھ لیں, مشکل نہیں ہے, ایک زیر اور ایک زبر ہے بس. اچھا, میں یہ جی بتا رہی تھی کہ میم والے جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا, وہ ان کو آپ اسم کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. مفتاحن, ٹھیک ہے نا, مدرسن, میم والے جتنے بھی آئیں گے ان کو اسم کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. جی جی ٹھیک ہے. تو بس اب میم من اور من تو یہ حرف میں آ جائیں گے, ہے نا. وہ تو حرف میں آئیں گے نا, وہ تو حرف ہے نا, جی جی جی. ٹھیک ہے. جو ہاں مطلب جی ٹھیک ہے. ہاں, جو اسم ہوں گے نا, جو شروع میں میم آتا ہے, وہ جیسے مسلمون, مومنون, تو اب یہ کس کیٹیگری میں جائیں گے, حرف کی کیٹیگری میں تو نہیں جائیں گے نا. اسم میں, اسم. ہاں, تو وہ حروف جارہ تو حروف ہی ہیں, اور آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ حروف ہیں, ٹھیک ہے. تو میم کلمے ایک کی, کنفیوژن تھی بولو. میم, وہ اس ٹاپک سے تھوڑا الگ ہے, پوچھ لوں کیا.
पूछ लें, मैम, लेकिन बहुत मुख्तसर एडवांस सही लेवल मैम, नहीं होना अगर चाहिए क्लास के लिए। नहीं नहीं just, नहीं नहीं मैम, हाँ, नहीं मैम, बोलें, ये इसी का ही है मैम। मैम ये जो एडजेक्टिव और इस ये था ना मैम, सिर्फ नात और मनूत एक पढ़ा था मैम, बट मैम आप जैसे अपने लेक्चर्स देते हैं उसमें हम सिफ्त और मंसूब या मौसूब ऐसा कुछ बताती हैं, मौसूफ। तो मैम जी मैम उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इसमें जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर में जो पॉइंट्स उसमें तो ये था ही नहीं मौसूब वाला, सिफ्त और मौसूब। वो मैं इसलिए पढ़ाती हूँ कि मौसूफ हमारी उर्दू में बोला जाता है ना, अच्छा, और सिफ्त भी हमारी उर्दू में बोला जाता है तो ना। मतलब मैम अरबी में तो नात और मानूत होता है ना। तो इसको आप मनूत कह लें, ये मीम से शुरू हो रहा है, ये भी मीम से शुरू हो रहा है, इसको मनूत कह लें और इसको नात कह लें। मनूत और मंसूब एक ही चीज है। मंसूब नहीं है, मौसूफ है। जी मैम, मनऊत मौसूफ, मौसूफ, ठीक है ना। अच्छा मौसूफ और मौसूफ, मनऊत एक ही चीज है, और सिफ्त और नात एक ही चीज है। नात में हम क्या करते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, सिफ्त ही बयान की जाती है ना। एडजेक्टिव, जी जी जी, उसमें नबी सल्लल्लाहु उसकी अलैहि वसल्लम क्वालिटीज, की जी हाँ क्वालिटीज बयान की, सिफ्त बयान की जाती है उनकी, ठीक है। जी मैम, तो अरबी जी में जी कहते जी, हैं मनऊत और नात, और हमारी जुबान में मौसूफ और सिफ्त। अच्छा ये मौसूफ बोलते हो आप, मौसूफ, हाँ, मौसूफ को ठीक है मनऊत बोल सकते हैं और नात बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये भी अरबी में बोला जी जाता है मैम। मौसूफ और सिफ्त मैम की, अच्छा हुआ, क्लियर हो गया, बहुत ये भी अरबी कंफ्यूजन में होती बोला थी जाता इससे। है। तो आप मौसूफ और सिफ्त भी कह सकते हैं, मनऊत और नात भी जी कह सकते हैं। और ठीक है, ठीक है, तो जी अब मैम, आपको जी क्लियर हो मैम, गया। जज़ाकल्लाह खैर। ये जी मैम, ये इसमें मीम से बहुत शुरू हो कंफ्यूजन रहा है, होती तो थी इसके मुझे। नीचे ही आप मनूत लिखेंगी, ठीक है। मनूत वो होता है जिसकी ठीक है, नात बयान की जाए, ठीक है ना। जी मैम, जी मैम, जी मैम, मनऊत, हाँ, और एक होता है नात। जैसे होता ठीक है है ना, मैम, एक होता है जुल्म, जुल्म होता है ना, और एक होता है मजलूम, जी जी जी, मजलूम मनऊत, है ना। अब ये क्या है, इसमें मीम आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा, ठीक है। जुल्म और मजलूम, तो एक चीज है जुल्म, जुल्म क्या है जुल्म है ना, सिफ्त है ना। और ये क्या है, मजलूम जी क्या है, मैम, जिसके ऊपर जुल्म किया जिसके जाए, ऊपर हो रहा है, जिसके जी ऊपर हो रहा है, ठीक है जी ना, जी, तो वो मजलूम है। इसी तरह बाकी सब लफ्ज भी बनते हैं ना, मजलूम और बना सकते हैं आप, जो जी भी मैम, जितने भी बनाए तो मीम लगा के आप बना सकते हैं। तो ये आपका जो है, इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो ये मजलूम है। बिल्कुल इसी तरह मौसूफ जिसकी सिफ्त बयान की जाए, मनऊत जिसकी नात बयान की जाए, तो मजलूम जी जिसके मैम, ऊपर जुल्म किया जाए। तो ये इस तरह से होता है। चलें बहुत अब अच्छा आगे आते एग्जाम्पल हैं दिया। लेसन की तरफ इंशाल्लाह। चलिए, जी, जो आगे नंबर हम 11, थोड़ा सा रह गया, आप पढ़ लीजिए। जी, नंबर 11 है वब्नु मन हुआ, हुआ हुवब्नु खालिदिन। वो लड़का कौन है, वो खालिद का बेटा है। अच्छा, यहाँ पर तो आपको एक खास चीज सिखाई जा रही है, हाँ जी जी जी, इब्नु मन। ये जी, इब्नु तो ये मन पूरा, किस, ये पूरा हुज सन, किसका हुसन, बेटा, हाँ, किसका बेटा, क्या समझते हैं ये कौन सा मुरक्कब है, किसका बेटा। ये भी एक मुरक्कब है ना, वब्नु मन, तो ये किसका, मुरक्कब, जी, मुरक्कब इजाफी इजाफ, है, क्योंकि इसमें का की के का तर्जमा आ रहा है, जी जी और उल्टा तर्जमा हो रहा है ना। मन जी का तर्जमा किस पहले हो रहा है, हुज सन इज दिस, ठीक है जी, ना। हुज हाँ, सन इज हुआ, यानी वो किसका बेटा है। तो इसको आप क्या वो बनाएंगे, किसका बेटा, अबनु मन को क्या बनाएंगे और हुआ को क्या बनाएंगे। इसमें ये जमीर है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जी के लिए जी, नहीं आ रहा, क्वेश्चन के लिए क्या आ रहा है, मन आ रहा है। मन, हुज मन, मन मन, हाँ, तो इसको आप क्या, इसको आपकी मर्जी है, इसको आप मुब्तदा, ये पहले आ रहा है ना, तो इसको आप मुब्तदा ही बना लें। अगर आप खबर भी बनाना जी, चाहते तो खबर भी, हाँ खबर बनाएं, क्योंकि हुआ को फिर आप खबर नहीं बना सकते। नहीं, हुआ जो होता है ये हमेशा मुब्तदा मुब्तदा बन ही के है, मुब्तदा बन मुब्तदा ही के हो, आता है। और इस जी, तरह से ये क्वेश्चन वाला जो है ये आपका खबर बन जाएगा, इब्नु मन, सही, ठीक है। और ये आपका मुब्तदा। ये जो हाँ, प्रोनाउन होते मन, हैं ना, शुरू में आए या आखिर में आए, किसी वजह से आखिर में भी आ जाते हैं, शुरू में यहाँ आ रहा जी, है तो ये मुब्तदा ही बनेगा, ठीक है।
तो बस इसको जी अब आपके ऊपर आगे एक साइज भी आएगी इब्नु मन पे। मैम नॉर्मली मुब्तदा पहले आता है बट इस केस में मुब्तदा बाद में है और खबर पहले है। हाँ जब क्वेश्चन आता है ना क्वेश्चन, तो फिर आपकी खबर पहले आ जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है? ठीक है तो मैम। जी मैम। सिस्टर इसको क्या कहेंगे, वबनू को? वब्नु को वाव जो है हर्फ है ना, इसको हर्फ की कैटेगरी में ये तो डालेंगे। हर्फ जी हर्फ हो इब्नु गया। मन जो है ना, इब्नु मन मुरक्कबे इजाफी है, किसका बेटा। अच्छा सही सही, तो ये पूरा एक Whose- खबर होगी। देखें इंग्लिश में पॉजिटिव ही एस लगाते हैं, whose son, WHO लिख के आप उसके ऊपर एस डाल सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं, और whose इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, सारे उस जी, क्वेश्चन जी। के लिए आ रहे हैं। अच्छा जैसे जी। आप कहते हैं ना हामिद्स पेन, तो आप क्या हाँ। करते हैं, हामिद्स के ऊपर एक इस तरह का हम लगाते हैं ना, अपॉस्ट्रोफी कॉमा। एस लगा देते हैं, Apostrophe अपॉस्ट्रोफी एस। तो जिस जी। सेंटेंस में पॉजिटिव ही एस लग जाए या काफी का तर्जुमा आ जाए, वो मुरक्कबे इजाफी होता है। सही। ठीक है ना? अच्छा 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 जी मैम जी मैम। तो ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्लास थी ये वैसे। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जी। हर क्लास इम्पोर्टेंट बहुत होती है, आप Yes, उसको ma'am. इम्पोर्टेंट देते नहीं है। ठीक है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब ये मुब्तदा है और इब्नु खालिदिन क्या है, ये आपका क्या बनेगा, द खबर। खबर। खबर ही इसमें तो बनेगी ना, खबर- क्योंकि ये आपका मुब्तदा बन गया। इसको आप खबर नहीं बना सकते, यहाँ पे भी आपने इसको मुब्तदा ही बनाया। ठीक है, हाँ और यहाँ पर भी इसको आपने मुब्तदा ही बनाया। ठीक है, ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, जी, मैम। अंता हुआ अना, इनको मुब्तदा ही बनाना होता है। इनको कहते हैं डिटैच प्रोनाउन। जैसे जी, जी, जी। हाउसेज होते हैं ना, आप तो रहती हैं माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में है, तो डिटैच्ड जी, जी। हाउसेज होते हैं और अटैच्ड हाउसेज होते हैं। जी जी तो अटैच्ड कौन से होते हैं, जो मिले होते हैं लाइन से घर। जी ठीक है ना, जी जी और जो जी। डिफरेंट जो फासले पे होते हैं, थोड़ा बीच में गैप होता है, फिर दूसरा घर होता है, उनको क्या कहते हैं, जी। डिटैच्ड हाउसेज। सही। तो इसी तरह से प्रोनाउन भी दो तरह के होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जुड़ के आते हैं। अभी तक आपने जुड़ा हुआ प्रोनाउन कोई नहीं पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, जी अभी आप जी सिर्फ जी। डिटैच्ड ही पढ़ रहे हैं। तो डिटैच्ड प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके शुरू में आए या आखिर में आए, उन्होंने मुब्तदा ही बनना है। यहाँ पे ये सही। आखिर में आ गया था, मुब्तदा खबर पहले आ गई थी, तो ये मुब्तदा बना, यहाँ पे ये शुरू में आ गया। जब एक दफा मुब्तदा ठीक। बना लिया तो फिर उसके बाद खबर बनाएंगे, फिर दोबारा से मुब्तदा नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक मुब्तदा जी। बन गया, आगे उसकी खबर आएगी। एक खबर बना ठीक ली, उसके बाद मुब्तदा आएगा। जी जी। ठीक ठीक है। है, मैम अब अटैच्ड वही होंगे ना यतान जो आपने बताए थे? यतान से तो कोई ताल्लुक ही यतान नहीं है इसका। मैम अटैच्ड। यतानिया वो जो है मदारे, अलामत मदारे की बात करनी है टीचर। हाँ नहीं, वो क्यों ला रही है यहाँ पे, मैं तो कभी बताया नहीं आपकी क्लास में यतान के बारे में, वो तो मैंने अच्छा, कभी नहीं ओके, बताया। ओके। कौन हाँ सी ये क्लास में नहीं। आप मेरी कौन सी क्लासेस सुनती रहती हैं मैम आपकी क्लास तो देखें, है ये। नहीं हर क्लास में सुना करें, फिर आप कंफ्यूज होती हैं। देखें, अब यतान पता नहीं आप कहाँ से ले आई हैं। अच्छा, अब हमारी टीचर ने ये वो कभी लफ्ज मेरी, इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी नहीं। हाँ नहीं कभी नहीं यूज किया, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी ना। जब जरूरत होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है अभी। मैम हाँ। शायद 10th या और फिर सेकंड बुक में जहाँ पे आपने बताया इस्तेमाल था। होते हैं ना, वहाँ पे आते ही नहीं कहते हैं, इसे यतान नहीं कहते। हाँ क्या बोलते हैं? आते ही नहीं कहते हैं, यतान नहीं, नहीं कहते, यतान तो भी बहुत कह मुश्किल है। सकते, यतान भी कह सकते हैं, यतान भी कह सकते हैं, वो सही कह रही है। मैं यतान ही टीचर पढ़ाती हूँ, मैं जी यतान मैम इसलिए आपका पढ़ाते ही। हैं, कुछ लोग इसको आती भी कह देते हैं, मैंने ये भी देखा है। अच्छा, यतान सबसे इसलिए मैं कहती हूँ, यतान के पहले या आती है, फिर ता आती है, फिर अलिफ आती है, फिर नून आती है। और यतान आसान है, या जो आपने लफ्ज बोला है वो आसान है? मैम इरम यतान बताओ। इजी लगा थोड़ा मुझे तो। मारूफ है टीचर, यतान मैंने सुना ही पहली दफा, सच में। तो सुन बिल्कुल लिया, आप सुन लिया है ना? तो हाँ, बस सुनना है ना? मैम जी मुझे तो अब अरबी में ये सब A to Z जो भी आता है वो बस शमीम मैम की बदौलत ही आता है, अच्छा, आप ऐसे इसलिए मुझे करें, यतान ही पता है। हाँ यतान आपने कोई फिर मेरा तीसरा चौथी क्लास का या दूसरी बुक का कोई एंड का लेक्चर सुन लिया जी होगा, मैम। आप मेरे साथ स्टिक। मैंने हाँ कभी टीचर के मुंह से ये लफ्ज नहीं सुना। अच्छा, आपने टीचर सुन लिया ना आज आपने? जी टीचर, आज तो सुना। देखिए, यतान मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुदारे में पहले या आती है, फिर ता आती है, फिर अलिफ आता है, फिर नून आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको इसी सीक्वेंस में ऑर्डर याद में करवाती बोलते हैं हूँ। ना, ऑर्डर में बोलते हैं। अब आप जो लफ्ज बोल रही हैं अतईन, उसमें ऑर्डर नहीं है। अतईन जो हाँ, बोल रही है उसमें ना आप, उसमें ऑर्डर नहीं है ना।
اب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, ہر کوئی اپنی ڈفرینٹ انداز میں لکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس کو آگے یتان ہی رکھیں, ایک ہی طرح سے چلیں گے, لیکن ابھی یتان کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا جی, تو ابھی انہوں نے کیا پوچھا تھا کوشچن, یتان سے کیا ریلیٹڈ کوشچن پوچھا تھا آپ نے؟ میم یہ تھا کہ یتان جو ہے وہ غائر اٹیچڈ کی پروناؤن بات ہی کری ہوتا تھی نا ہے نا. ٹیچر آپ, اٹیچ اور ڈیٹیچ. ہاں تو یہ اٹیچ, ہاں وہ میں بتا دیتی ہوں. یہ جو اکیلے اکیلے پروناؤن آتے ہیں نا فاصلے پہ, ان کو ڈیٹیچڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انا ہو گیا, جی کسی سے ملا ہوا نہیں جی ہے نا. جی, اچھا, انا ابھی میں انتم انا نحنو. ہاں ابھی جیسے میں بتاتی ہوں, لہو, لہو ہو گیا, فی ہی ہو گیا, کتابو ہو گیا. یہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا, لہو ما فی السماوات, جی 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 لا ریب جی میم. فی ہی, لا ریب فی ہی. ٹھیک ہے نا, تو یہ والا پروناؤن جو آ رہا ہے نا, یہ پھر اٹیچڈ ہے کیونکہ یہ کسی کے ساتھ مل کے آ رہا ہے. اچھا میم, جیسے ہو, ہم, کاکم, ہاں کاکم, اینا. جیسے ایا کا قرآن مجید میں آتا ہے نا, روز پڑھتے ہیں آپ لوگ سورۃ فاتحہ میں, ایا کا, تو یہ کا کون سا پروناؤن ہے؟ یہ اٹیچ ہے کیونکہ جوڑ کے آ رہا ہے. اصل میں ہوتا تو کا ہی ہے نا, لیکن جڑ کے آ رہا ہے ایا کے ساتھ, تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اٹیچ پروناؤن کہیں گے. جو بھی پروناؤن جیسے کتاب کے ساتھ جڑ جائے, کتابو ہم لگا دیں آپ, کتابو وہ بھی لگا سکتے ہیں, کتابو ہم بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ جو ہم آ رہا ہے نا پروناؤن ہے, یہ آپ کا کیا ہے؟ اس کے ساتھ مطلب میم اٹیچ, ان سب کی بک, تو یہ ان سب اٹیچ, کی کتاب. ہاں تو یہ جو ہے یہ آپ کا یہ اٹیچ پروناؤن ہے کیونکہ یہ جوڑ کے آ رہا ہے. جی میم جی لیکن میم. ہوم اکیلے سے بھی آتا ہے, اکیلے سے بھی آتا ہے ہوم, ہوم المفلحون آتا ہے نا قرآن مجید میں, اولئک ہوم المفلحون. تو اب یہ ہوم کیا ہے؟ بالکل الگ سے آ رہا ہے, جوڑ کے نہیں آ رہا کسی کے ساتھ, تو یہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا ڈیٹیچڈ. ڈیٹیچڈ. تو آپ نے پروناؤن کو پہچاننا ہے کہ وہ اکیلے آ رہا ہے یا جوڑ کے آ رہا ہے, بس یہ بات ہے. ٹھیک ہے چلیں میم. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پتہ نہیں سب کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کلاس میں, لیکن جتنا سمجھ آ رہا میم ہے آ رہی ہیں میم, بہت اچھے سے آ رہی ہیں میم, سب ہاں کلیئر بھی ہو گیا سارے ڈاؤٹس. آپ کو ہو رہا ہے نا. چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ, ہر جی. لیول پہ کلاس میں لوگ ہوتے ہیں. نمبر 12 پڑھیے. نمبر 11 کمپلیٹ ہوا استاذہ, وہ سسٹر, ہاں ہوا ابن خالدن. تو اب اس میں خالد کا بیٹا ہے, تو جو پہلا کوسچن ہے وہ پورا مرکب کہلائے گا, اور دوسرا بلکہ جملہ کہلائے گا, اور دوسرا جو ہے ہوا ابن خالدن, یہ کیا, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بھی دیکھیں ایک سیکنڈ, مرکب اضافہ. ایک سیکنڈ, کتاب ہے نا, یہاں پہ اچھا دو مرکب اضافہ. دو جملے بھی تو بن رہے ہیں نا سسٹر, دو جملے بن رہے ہیں جی نا. صحیح. تو دو جملے, ایک کوسچن والا ہے اور ایک بغیر کوسچن کے ہے. ٹھیک ہے, دونوں ہی اچھا جملہ اسمیہ ہیں, دونوں ایک ہی ہی وزن جملہ پہ. اس میں. اس کا مبتدا خبر الگ ہے, اس کا جملہ, اس کا مبتدا خبر الگ ہے. ٹھیک صحیح. ہے, اس میں آپ کا ٹھیک. یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے ابن خالدن. اس میں آپ کا ابن من جو ہے یہ آپ کا اس خبر ہے, اور ہوا کیا ہے؟ جی ہوا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا, سوال کیا جا رہا ہے ہاں کہ کس کا بیٹا صحیح ہے. صحیح. اب یہ جی کر لیں, اینا مسجد رسول اللہ, میم جملہ اسمیہ وہی ہوتے ہیں نا جو ہوا سے سٹارٹ ہوتے ہیں, جو اسم سے جس میں اسٹارٹ اشارہ. ہوتا ہے. اچھا اچھا, او سوری میم, وہ تو اشاری ہوتے ہیں ہے نا, جملہ اشاری ہوتے ہیں ہوا والے تو. جملہ اشاری کچھ نہیں ہوتا ہے, مرکب اشاری ہوتا ہے. جی جی, مرکب اشاری. یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اچھا اسمیہ نمبر ہوتا ہے, اور 12 جملے دو ہی طرح کے ہوتے ہیں, جملہ اسمیہ ہوتا ہے, جملہ فعلیہ. اچھا سوال کرتی ہیں, ان کی ڈاؤٹس ختم ہوتے ہیں نا, سوال جی کرنا میم. آدھا میم علم آپ نے کیا بتایا, جملے دو ہوتے ہیں, کون کون سے؟ جملہ اسمیہ ہوتا ہے جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا, اور دوسرا میم؟ اور اسم کی کیٹیگری میں کیا کیا آتا ہے آپ کو فعلیہ. پتہ ہے نا, کسی کا نام بھی آ اچھا سکتا ہے, فعل. مرد ہو عورت ہو, ہے نا. جی میم. پھر اسم دوسرا اشارہ فعلیہ. بھی آ سکتا ہے, اسم ضمیر بھی آ سکتی ہے, تو یہ سب مبتدا بن سکتے ہیں نا شروع میں آئیں گے تو, جی 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 سارے ہی مبتدا بن جائیں گے. ٹھیک ہے, جی میم. صرف یہ نہیں ہے کہ محمد ہی مبتدا بنے گا یا قرآن ہی مبتدا بنے گا, جتنے بھی نون کی کیٹیگریز میں جتنے بھی آتی ہیں چیزیں, وہ سارے کے سارے مبتدا بن جاتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ آہستہ سے ساری چیزیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اب شروع میں جی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا آ جائے, جیسے یہ جملہ ہے, اینا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ کوسچن ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ جو یہ ہے تو اسم, مبتدا اور خبر دونوں ناؤن ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ناؤن ہوتے ہیں. تو یہ بھی ناؤن جی ہے, لیکن اس کو میں مبتدا نہیں بنا رہی. کیوں نہیں بنا رہی؟ حالانکہ ناؤن ہے, شروع میں بھی آ رہا ہے, تو میں مبتدا نہیں بنا رہی. ابھی میں نے بتایا ہے. فرزانہ آپ کہ یہ بتائیے. کوشچن میں آیا میم نا, یہ کوشچن ورڈ ہے نا, تو ویئر Question آئینہ. بالکل سوال صحیح ہے. بات. ہاں بالکل, کوشچن والے ورڈ جو ہوں گے وہ اگر شروع میں آئیں گے WH فیملی سے, تو وہ آپ کے کیا بنیں گے؟ وہ آپ کے مبتدا بنیں گے, وہ آپ کی خبر بنیں مبتدا گے. مبتدا نہیں بن سکتے, خبر مبتدا نہیں بن سکتے. ویسے تو جو ناؤن شروع میں آئے وہ مبتدا بنتا ہے, لیکن اگر کوشچن والا کوئی ناؤن شروع میں آ جاتا ہے, جیسے یہاں پہ من آیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ آئینہ آیا ہے, تو یہ کوشچن والے جو ہوں گے یہ خبر بنیں گے. خبر بنیں گے. ٹھیک ہے نا, اس کو خبر بنا دیں. اور آگے آئینہ کے ساتھ مسجد جوڑا ہوا تو نہیں ہے نا, مسجد تو آگے جوڑا ہوا ہے, مسجد رسول اللہ. جی تو ہاں, تو اب یہاں پہ اس کو آپ نے خبر بنا دیا, تو آگے والے کو کیا بنائیں گے؟ مسجد رسول اللہ. مسجد کو جی, کیا یہ بنائیں گے؟ مسجد رسول اللہ پورا یہ مبتدا ہو گیا. خبر ہاں, مبتدا خبر ہے. بنائیں گے. کیونکہ خبر تو آپ نے پہلے بنا لی نا, خبر تو آپ نے آئینہ کو بنا لیا مبتدا نا, ہو جائے گی, مبتدا ہو یہ جائے سارا گا. مبتدا ہو جائے گا. جو آگے آ رہا ہے وہ مبتدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مسجد رسول اللہ, یہ پورا ایک ہی جملہ ہے. اس میں کتنے مرکب اضافی آ رہے ہیں؟ 2 آ رہے ہیں. ٹیچر ہاں وہ وہی پوچھ رہی تھی میں ٹیچر, یہ 2 رسول اللہ آ رہا ہے, تو 2 پر مطلب وہ 2 مرکب اضافی ہے, اس لیے رسول پر بھی زیر ہے اور اللہ پر بھی. ہاں یہاں پہ مسجد. دیکھیں, ہاں اگر یہ 2 مرکب, 3 یہاں پہ 3 لفظ ہیں تو 2 مرکب بن رہے ہیں. پہلے مسجد رسول بن رہے, رسول کی مسجد. ٹھیک ہے, پھر رسول اللہ, اللہ کے رسول کی مسجد. تو ترجمہ یہاں سے ریورس, میں بتا رہی ہوں, ریورس گیئر کو یاد رکھیں. مرکب اضافی میں آپ نے ترجمہ الٹا کرنا ہے. پہلے اللہ کا ترجمہ کریں گے, اللہ کے رسول کی مسجد. اللہ کے رسول اللہ ہی اللہ کا رسول. ٹھیک ہے, پھر اللہ کے رسول ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کا رسول کی مسجد تو نہیں کہہ سکتے نا. تو اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے؟ تو یہ خبر ہے اور یہ پورا آپ کا مبتدا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ کا کیا ہے, اس کو بریکٹ میں لکھتے ہیں. اچھا آگے پڑھیے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے جب 2 مرکب اضافی آتے ہیں, تو جو دوسرا مرکب اضافی کا جو فرسٹ پارٹ مضاف ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. یہ آپ کا مجرور ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈبل رول کر رہا ہے نا. یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ڈبل پارٹ کر رہا ہے. آپ نے کبھی کوئی مووی دیکھی جس میں ڈبل رول ہوتا, ایک آدمی ڈبل رول کر رہا ہوتا ہے, باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی کر رہا ہوتا ہے نا, کبھی ہے نا, اپنے دوست کا بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ کیا ہے, ڈبل رول کر رہا ہے. یہ مضاف کا بھی رول کر رہا ہے, مضاف الیہ کا بھی رول کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کے اوپر مضاف الیہ کے لیے زیر, جیسے مضاف الیہ پہ زیر آتی ہے تو زیر بھی آ رہی ہے. اور ایک زیر کیوں آ رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے. مضاف پہ تنوین نہیں لگا سکتے کبھی بھی, تو ہم اس کے اوپر تنوین نہیں لگا سکتے. رسول لن نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. تو اس میں دونوں کی صفات آئیں گی, مضاف کی بھی آئے گی اور مضاف الیہ کی بھی آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اگین یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اس طرح 2 مرکب اضافی بن گئے. جس کو نہیں آئے بالکل آرام سے رہے, کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. ترجمہ آپ نے الٹا کرنا ہے, ترجمہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کی مسجد. میم جیسے رسول اللہ ہی ہے, تو اس میں اللہ تو مضاف ہے اور مضاف الیہ ہے, اور رسول مضاف ہے نا میم؟ رسول مضاف ہے, اللہ ہی مضاف الیہ ہے. بالکل, کیوں نہیں ہے؟ تو میم لام, تو میم لام پہ پھر پیش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مسجد کے حساب سے مضاف ہے, اس لیے. دیکھیں میری بات غور سے سنیں, جو مضاف ہوتا ہے نا اس کے اوپر 3 حرکات آ سکتی ہیں. پیش بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, زبر بھی آ سکتی ہے, لیکن ایک ہی حرکت آئے گی, ڈبل حرکت نہیں آئے گی, تنوین نہیں آئے گی, الف لام نہیں آئے گا, الف لام نہیں آئے گا.
अगर ये अच्छा। मस्जिद ना होती ना तो हम रसूलुल्लाह ही कहते ना, किताबुल्लाह ही, जी 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 बैतुल्लाह, जी है ना। लेकिन चूंकि जी। पीछे ये मुदाफ आ गया है ना, अच्छा। इस मुदाफ ने क्या जी किया, जी इसको मुदाफ इलैह बना दिया। जी जी जी। तो मुदाफ इलैह के ऊपर पेश तो नहीं लगा सकते ना। नो नो नो। हाँ, तो ये मुदाफ इलैह है इस मुदाफ का, इस मुदाफ अच्छा। का मुदाफ इलैह है, तो इसलिए हमें ज़ेर देनी जी पड़ी, ठीक है ना। जी तो जी इसलिए मैम कहते जी। हैं ना कि ये अपना लिबास चेंज करता रहता है, कभी अच्छा। रसूलुल्लाह ही होता है, कभी रसूलिल्लाह ही होता है, कभी रसूल अल्लाह भी होता है, ठीक है ना। जी मैम। रसूल जी अल्लाह मैम। ही भी होता है, जबर भी आ जाती है। जी मैम। जज़ाकल्लाह खैर। अगर ये मुदाफ बनेगा, सिर्फ मुदाफ बनेगा तो पेश लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये जी मुदाफ इलैह मैम। भी बन रहा है, डबल रोल कर रहा है, तो फिर हम जेर भी लगाएंगे मजबूरी में, क्योंकि मुदाफ इलैह बन रहा है। जी मैम। और जी फिर हरकत एक ही लगेगी, मुदाफ के ऊपर डबल हरकत नहीं आ सकती, ना अलिफ लाम आ सकता है, इसलिए तो अलिफ लाम भी नहीं आया ना। जी मैम। अलिफ लाम किस पे लगाते हैं, जो बिल्कुल लास्ट वाला होता है उस पे जाके अलिफ लाम लगाते हैं, जो बिल्कुल लास्ट जी वाला होता जी है ना जी मुदाफ जी इलैह, मैम। उस जी पे मैम। अलिफ लाम लगाते हैं। जी अगर इसके आगे कुछ बताया और था भी आ आपने, रहा होता तो फिर उसके ऊपर जाके अलिफ लाम लगाते हैं। या तो ठीक है। स्टार्टिंग में होता है या फिर एंड में। जी बिल्कुल, वो स्टार्टिंग में मुब्तदा बन रहा होता है, जब अलिफ लाम आता है तो उस वक्त मुब्तदा जी बन जी रहा जी होता है। जी अल्लाहु, अल्लाहु अजीमुन, तो अल्लाहु मुब्तदा बनेगा, अजीमुन खबर बनेगा, उस वक्त वो अल्लाहु जो है शुरू में जब आ रहा तो मुब्तदा बनेगा। आगे इसको पढ़े, हुआ फिल, इसको बीच का मुदाफ भी कहते हैं। हाँ बीच का मुदाफ भी कहते हैं इसको। हाँ हाँ, इसको ना असल में बहुत सारे मुदाफ बीच में आ सकते हैं, लेकिन जो भी आएगा वो जेर ही लेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका पिछले वाले का क्या बन रहा होता है, वो मुदाफ इलैह बन रहा होता है। तो मैम जितने भी बीच में आते हैं मुदाफ, उन्हें बीच का मुदाफ बोलते हैं। हाँ, उसको बीच का मुदाफ बोलते हैं, उसके बहुत सारे नाम होते हैं। उसको मल्टीपल मुरक्कब इजाफी भी कह सकते हैं, पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी कह सकते हैं। एक तो मुरक्कब इजाफी है जैसे रसूलुल्लाह ही है, ठीक है ना, वो है बस सिंपल 2 वर्ड से एक मुरक्कब इजाफी बन रहा है, जैसे इब्नु खालिदिन, इसमें बस ये देखें आपका इब्नु पेश आ रही है, लेकिन अगर इसके पीछे एक और मुदाफ आ जाता है तो फिर हम इसको जेर देंगे, ये मुदाफ इलैह बन जाएगा, और फिर इस तरह से खालिदिन आगे एक और मुदाफ, तो ये बीच का मुदाफ बन जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ या क्या है, फिर ये इस तरह मुदाफ, भी कह सकते हैं कि ये डबल स्टेटस लेता है और ये ऑलवेज मजरूर हाँ होता है। हाँ, डबल जो मिडल वाला होता है ना, जो भी मिडल में आएगा उसने जेर ही लेनी है, उसको आप नहीं दे सकते, मिडल वाले मुदाफ को हमेशा जेर मिलती है। तो यहाँ पर मिडल वाला मुदाफ क्या है, रसूल है, उसको जेर मिली है, सही है, उसको फिर आप पेश नहीं लगा सकते। तो आगे चले, लेसन रह रहा है हमारा हुआ फिल, फरजाना खत्म करें। जी जी। हुआ फिल मदीनती, हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरा, मुनव्वरा वो मदीना मुनव्वरा में है। कौन सा जुमला है, ये जुमले इस्मिया है, और हुआ मुब्तदा है, और फी फिल मदीनतिल मुनव्वरा जो है वो खबर है, और ये कभी इजाफी है, तो इसमें मदीनतिल मुनव्वरा, मुनव्वरा जो है वो मुदाफ और दोनों ही मुदाफ इलैह होंगे। अच्छा, दोनों के हुआ मुब्तदा है, ठीक है, हुआ मुब्तदा है, फी जो है ये हर्फ जर है, हर्फ है ये। अल मदीना तिल मुनव्वरती कौन सा मुरक्कब बन रहा है ये तो वो बन रहा है मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। मुरक्कब इजाफी क्यों नहीं बन रहा, मुरक्कब इजाफी क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हालत में हैं। हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड है ये, ठीक है इधर। अच्छा जी जी, इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको मुदाफ कहें और इसको मुदाफ इलैह कहें तो मुदाफ के ऊपर तो अलिफ लाम नहीं आ सकता। हाँ सही, कभी नहीं देखा ना आपने मुदाफ के ऊपर, तो अब जी। इसके ऊपर तो अलिफ लाम आ गया तो ये तो मुदाफ नहीं बन सकता। बेशक ये मजरूर है बट ये आपका मुदाफ नहीं बन सकता, तो ये मुरक्कब इजाफी की कैटेगरी से निकल गया ये। इसको आप अभी कौन सा मुरक्कब बनाएंगे, बैलेंस्ड है ये, इधर भी जेर है, इधर भी अलिफ लाम है, तो आपका तौसीफी बन गई। अच्छा, इसको जब फी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखें और फी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा पूरा,
یہ جار مجرور، یہ حرف جر ہے فی، اور اندر کا یہ bracket میں یہ مجرور کہلائے گا یا پورا مرکب جاری بن جائے گا. ٹھیک ہے، اندر کچھ بھی ہو باہر والے سے ملٹیپلائی ہو کے وہ مرکب جاری بن جائے گا کیونکہ پیچھے بار حرف جر ہے. جی ٹھیک ہے نا. صحیح. اور اس کو مرکب ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا 3+2 والی مثال. جی بالکل. ہاں 3+2 اور اس میں کیا ہے پھر آپ کا، اگر اس کو جمع یہ بریکٹ میں بار 0 ہے تو کیا ہو جائے گا از اکول ٹو 0 ہو جائے گا. اسی طرح یہ پورا آپ کا مرکب جاری بن کے کیا بن گیا، خبر بن گیا. جی ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا بن گیا. میم یہ مرکب اضافی اس لیے بھی تو نہیں ہے کیونکہ کسی کی پوزیشن میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں پوزیشن میں پوزیسو کیس ہے ہی نہیں نا. تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس کا بھی ترجمہ الٹا ہی کریں گے. اس کا بھی ترجمہ کیا کریں گے؟ الٹا ہی کریں گے مرکب اضافی کی طرح. لیکن کا کی کے نہیں لگائیں گے، یہ ڈفرنس ہے. پوزیٹیو ایس نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. مدینہ کیسے ترجمہ کریں گے؟ اردو میں تو ہم مدینہ منورہ کر دیتے ہیں نا، لیکن عربی سے جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو الٹا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کیسے کریں گے؟ منورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو روشن کیا گیا ہو، جس نورانی کہہ دینا تو وہ منورہ. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ آپ کا شہر ہے. تو اردو میں مدینہ منورہ بولتے ہیں تو آپ ویسے بھی بول سکتے ہیں، لیکن اب مرکب اضافی کا ترجمہ جو ہوتا ہے اس کو ویسے الٹا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ مرکب اضافی کی مثال دیں مجھے. کتابن، خوبصورت کتاب. کتابن جدیدن کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا جمیلن بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ کا یہ بیلنسڈ ہے تو یہ آپ کا نہیں بنے گا، مدافعلہ نہیں بنے گا کیونکہ اس کے اوپر تنوین آ گئی ہے. یہ بھی اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس کے اوپر الف لام آ گیا تھا. تو اگر پہلے لفظ کے اوپر آپ کا الف لام یا تنوین آ جاتی تو مضاف نہیں بن سکتا. جب وہ مضاف نہیں بن سکتا تو آگے والا چاہے زیر بھی آ رہی ہو مضاف الیہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ کریں فرزانہ. کتاب جدید اس کو چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دینا. کتاب جدید کا ترجمہ کریں. کتاب جدید. اچھا آپ جو لکھ رہی ہیں اس کا کروں؟ اس کا کریں. جدید نئی کتاب. نئی کتاب الٹا ترجمہ ہوا ہے نا. جی نئی ہاں کتاب. اسی طرح ہم روشن شہر، روشن شہر یا روشنیوں والا شہر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو مدینہ منورہ اردو میں کہتے ہیں تو آپ ترجمے مدینہ منورہ ہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کہاں ہے؟ وہ مدینہ منورہ میں ہے. اینا مسجد رسول اللہ، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ مسجد رسول کی کہاں ہے، تو ہوا پھر مدینہ المنورہ. اچھا اچھا آپ نا ایسے کیا کریں کہ اردو میں جملے لکھا کریں، جیسے ابھی ہم نے ترجمہ کیا نا نئی کتاب. ٹھیک ہے. اب نئی کتاب جو ہے اس کو اردو میں لکھیں اور پھر اس کا عربی میں ترجمہ کریں. اس سے آپ کو بہت زیادہ فہم بڑھے گا. ٹھیک ہے نا. جیسے نئی کتاب کا کر کے دیکھیں، کتاب اللہ کی کتاب کا ترجمہ کر کے دیکھیں، نئی کتاب کا ترجمہ کر کے دیکھیں، آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے، اور آپ کے روٹس بھی جو ہوں گے وہ پکے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مرکب توصیفی ہے نئی کتاب. اس میں کا کی بھی نہیں آیا اور اس میں پوزیٹیو ایس بھی نہیں لگے گا. جی تو یہ آپ کا مرکب بیلنسڈ ہے. یہاں پہ دیکھیں دونوں طرف الف لام آ رہے تھے، یہاں پہ دونوں طرف تنوین آ رہی ہے، دونوں طرف دمہ آ رہے ہیں، یہاں پہ دونوں طرف زیر آ رہے. ٹھیک ہے. جی یہاں پہ دونوں طرف گولتا آ رہی تھی، مؤنث تھے دونوں طرف. ٹھیک ہے. یہاں پہ دونوں طرف مذکر ہے، کتاب بھی مذکر ہے، جدید بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے یہ بیلنسڈ ہوتے ہیں چاروں حالتوں میں. یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. وہ آگے جب آپ بڑھیں گے چیزیں سیکھیں گے، اس میں کی عربی 4 حالتیں سکھاؤں گی تو پھر ہو جائے گا. چلیں یہ ٹھیک ہے، ہو گیا. اب لیسن ہمارا ایکسرسائزز پہ آتے ہیں. تھوڑا سا ابھی رہتا ہے نا، یہ بھی ہے 13 پارٹ بھی ہے. نمبر 20. اچھا فرزانہ کی بجائے کوئی اور لے لے. السلام علیکم باجی، ہم پڑھیں بولنا. کوثر آپ آئیے. جی بولیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا جی کوئی بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے؟ کون پڑھنا؟ باجی ہم پڑھیں. جی پڑھیے. کون ہے؟ السلام علیکم. سمیہ. سمیہ. سمیہ تو 3 ہے میری کلاس میں. آپ کا نام پورا کیا ہے؟ سمیہ سمیہ محبوب کھوکر.
अच्छा महबूब जी आप ही हैं, चलिए इसका मतलब है दोस्त जी नहीं है क्लास में। अच्छा म्यूट जी करें, बाकी लोग म्यूट करें। जी बिस्मिल्लाह बाजी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती, हामिद की बेटी मदरसे में है। व बिन्तु मोहम्मदिन फिल जामियाती, और मोहम्मद की बेटी जामिया में है, यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी में है। इस्मुल मुदर्रिसी सईदुन, मुदर्रिस के बेटे का नाम सईद है। वस्मुल मुहंदिसिल खालिदुन, और इंजीनियर के बेटे का नाम खालिद है। अम्मु तालिबी गनीयुन, तालिबी इल्म के मामू अमीर है। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन व बाबुल मदरसती मुगलकुन, मस्जिद का दरवाजा खुला है। मफ्तूहुन खुला है। व बाबुल मदरसती, और मदरसे का दरवाजा मुगलकुन बंद है। एक मिनट बेटा, पीछे आपके पीछे शोर हो रहा है ना। मम्मी एक ये मिनट आप आप खामोश रहिए। शिक्षा को नहीं कहते? सब जी बाजी, रिकॉर्डिंग में आ रहा है सब। जी बाजी एक मिनट जी। अब सही है? हाँ जी अब सही है, ठीक है। आप ऐसी जगह बैठा करें जहाँ शोर ना हो। अभी देखिए मैं ढूंढ रही थी कि किसके घर में शोर हो रहा है, लेकिन आपके घर में पता लगा शोर हो रहा है। चलिए सॉरी बाजी। अच्छा अब ये कौन सा जुमला है? बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती, कौन सा जुमला है? इसको क्या कहेंगी? बिन्तु हामिदीन, ये इस्मिया है या मुरक्कबी फेल है? जारी है। फिल्म इस्मिया है। इस्मिया है, तो इसका मुब्तदा खबर ढूंढे, दो पार्ट। बिन्तु इसका है ना मुक्तदा है, और हामिदीन फिल मदरसी तक ये खबर है। नो हामिद को हाँ आपने अलग, हामिद बेचारी को अलग क्यों कर दिया? बिन्तु हामिदिन तो मुरक्कब इजाफी है ना पूरा, जी। तो उसको बिन्तु आपने हामिदीन अलग क्यों कर दिया हामिद उनको? और हामिद को आपने खबर कैसे बना दिया? फिर ये तो मजरूर है, खबर तो नहीं है ये बिन्तु हामिदिन आपका पूरा मुब्तदा बनेगा, ठीक है। मुरक्कब इजाफी बन के पूरा मुब्तदा बनेगा, और फिर मदरसती पूरी क्या बनेगी? खबर बनेगी। आगे और इसमें वह बिन्तु मोहम्मदीन, ये भी मुरक्कब इज़ा, जो व है ना वो तो है ना वो है वर्ड है, हुर्फ है। और वो बिन्तु मोहम्मदीन ये मुरक्कब इजाफी है, और ये भी है ना मुक्तदा बनेगा, और फिर जामियती ये खबर बनेगा। हाँ जी, फिर जामियती क्या बनेगा? खबर बनेगा। ये हर्फ की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इस्म की कैटेगरी में नहीं आएगा, फेल में नहीं आएगा। ये वाला मुब्तदा है, ये खबर है। आगे बताइए, इस्मुल मुदर्रिसी साइदुन में एक मुब्तदा खबर बताइए। ये जुमला इस्मिया है, और इस्मुल मदरसती है ना ये मुक्तदा है, और सईदुन खबर है। वजह हमें बहुत कंफ्यूजन, ये हमें कंफ्यूजन बहुत हो रहा है कि है ना खबर कौन सी आएगी और ये मुक्तदा कौन सा आएगा, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। देखें आप, ये इसको अलग नहीं कर सकती, इस्मुल मुदर्रिसु को बिल्कुल मुदर्रिसु को अलग नहीं कर सकती, ये मुरक्कब इजाफी है, इसको नहीं तोड़ सकती आप, ठीक है जी। इसको अलग कर सकती हैं, इसके साथ कोई जोड़ नहीं है, और ठीक है, तो ये खबर बन जाएगी, ठीक है, और ये आपका मुब्तदा बन जाएगा। और इसी तरह से वो हरफ है इस्मुल मुहंदिसी, आपका इसको नहीं तोड़ सकती, ये पूरा आपका क्या बन जाएगा? जो मुरक्कब होता है उसको हम तोड़ नहीं सकते, जैसे फिल मदरसती पूरे को खबर बनाएंगे, इसको तोड़ नहीं सकते हम जी। तो इसी तरह इसको भी नहीं, इस्मुल मुहंदिसी को नहीं तोड़ सकते, इसको पूरी आप क्या बनाएंगी? मुब्तदा बनाएंगी, इसको खबर बनाएंगी, ठीक है। तो इसको आपने तोड़ना नहीं है। इसके बाद नंबर 15 में बताइए। ये उम्मु तालिबी, ये है ना मुरक्कब इजाफी भी और मुक्तदा है, और गनीयुन खबर है। हाँ, तो आपने इसको तोड़ना नहीं, बेचारों को अलग नहीं करना, ये पूरा मुरक्कब है, कंपाउंड है। अच्छा जी, आगे नंबर 16। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, मस्जिद ये है ना मुरक्कब इजाफी है, और ये जो बाबुल मस्जिदी है ना ये मुक्तदा है, और मफ्तूहुन खबर है। बिल्कुल। और इसमें ये वाव है ना, ये क्या बोलेंगे इसको, ये वर्ड है, और बाबुल मदरसती ये भी नहीं कहेंगी, आप इसको हर्फ कहेंगी। हर्फ
حرف جی حرف اور باب المدرستی مرکب اضافی بن کے مقتدا بن رہا ہے, مغلقن ہے نا بند ہے تو یہ خبر بن رہی ہے. بالکل بن رہے ہیں. اچھا یہ جملہ اسمیہ آپ نے بتایا نا, مبتدا خبر اس کا پارٹ ہے, تو یہ جملہ اسمیہ کیوں ہے, یہ جملہ فعلیہ جی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جملہ ہے نا اسم سے شروع ہو رہا ہے. اسم سے شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی اسم سے شروع ہوگا وہ آپ کا اسم جملہ اسمیہ ہوگا, پھر اس میں آپ نے مبتدا خبر ڈھونڈنے ہیں, ٹھیک ہے. جی اب یہ والا دیکھیں کس سے شروع ہو رہا ہے, اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے؟ یہ خالو حامدین فقیرین یہ ہے نا اسم سے شروع ہو رہا ہے, یہ بھی شروع ہو رہا ہے. یہ حامد کے چچا غریب ہیں تو یہ بھی اس سے شروع ہو رہا ہے. چچا نہیں ہے, اور یہ چچا بیچارے کو غریب نہیں بناؤ, ماموں غریب ہے. ماموں خالو خالو خالہ ہوتا ہے نا, خالو اور خالہ ہوتا ہے نا, تو خالو مذکر ہے اور خالہ میں گول تا لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ماموں ہو گئے. جی جی اب جی یہ جی خالن ہوتا ہے, خالن ہوتا ہے لیکن یہاں مضاف بن رہا ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی, ویسے تو جی خالن ہوتا ہے, خالو ہوں حامدن, ٹھیک ہے. اچھا اب جی آگے کون پڑھے گا, مجھ سے اور کو مائک دیتی ہوں, ابھی آپ کے پاس خاموشی ہوئی ہے تھوڑی. نیکسٹ سسٹر آ جائیں, سب کو ٹائم دینا ہے, خود ہی ہینڈ ریز کریں. کس کا ہے؟ سمیہ ہو گئی, فرزانہ, فہمیدہ, کوثر آپ آئیے. یہ پیچھے انہوں نے نمبر 15 پہ ماموں بولا, یہاں پہ چچا ہے. چچا کہاں سے ام آ جو گئی؟ ہے اچھا یہاں یہاں پہ پہ نمبر, اچھا یہاں پہ بھی ماموں بول گئی تھی, یہاں ماموں بول گئی جی تھی. جی اس کی اچھا پہلے امن جو ہوتا ہے نا یہ چچا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں سن پائی. امن چچا بردر ہوتا سائڈ. ہے اور خالن کیا ہوتا ہے, وہ آپ کا ماموں ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے, دونوں سیم نہیں ہو سکتے. امن چچا کو کہتے ہیں. اچھا جی آئیے, کون آ رہا ہے؟ کوئی نام لینے سے نہیں آ رہا تو پھر رضیہ آپ آئیے, رضیہ سلطانہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی میم 17-18 سے پڑھوں میں. ہاں جی, خالون کے بعد والا یہ والا پڑھیے. سیارت عباس فی الشارع. عباس کی گاڑی راستے میں ہے. سڑک پر ہے, سڑک پہ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سڑک پر ہے, سڑک پر ہے. اسٹریٹ سیارہ اسٹریٹ. سیارات عباس یہ مرکب اضافی ہے اور مبتدا بن کے آ رہا ہے. فی الشارع یہ مرکب جاری ہے, خبر بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل آگے پڑھی. ابن من انت. ابن بیٹے کو بولتے ہیں نا, ابن بیٹے کو بولتے ہیں. من کس کا؟ من ہوز. من یہ کیا تمہارا بیٹا ہے؟ نو, ابن من انتا. ابن من انتا, whose son are you. جیسے آپ بولیں گے نا آپ کس کے بیٹے ہیں, ابن من انتا, ٹھیک ہے, آپ کس کے بیٹے ہیں. آپ, انتا کا مطلب آپ. ابن من کس کے بیٹے, کس کے بیٹے ہیں آپ, کس کے بیٹے ہیں آپ. اب بتائیے اس میں مبتدا اور خبر. یہ ابن خبر ہوگی. نہیں, اس کو توڑنا نہیں ہے. ابن من یہ مرکب اضافی ہے. ابن مرکب اضافی ہے, مبتدا بن کے آئے گا. یہ مبتدا بنا دیں, لیکن اس کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ کوشچن والا ہے نا. جی میم, یہ خبر ہوگی. انت مبتدا ہوگا میم. جی مبتدا انتا ہوگا, کیونکہ پروناؤن کو ہمیشہ کیا بناتے ہیں, مبتدا بناتے ہیں, اور جو کوشچن والا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں, وہ خبر بنا دیتے ہیں. تو ابن من جو ہے یہ مرکب اضافی بن کے, اگر آپ اس کو مبتدا بنائیں گی تو پھر انتا کو خبر بنانا پڑے گا, تو اس کو تو خبر نہیں بنا سکتے نا. نہیں بنا سکتے, اس کو شروع میں آئے آخر میں اس کو آپ نے مبتدا بنانا ہے. تو ابن من آپ کا کیا بن جائے گا, مرکب اضافی بن کے خبر بنے گی, ٹھیک ہے. کوشچن میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, الٹ ہو جاتا ہے, خبر پہلے آ جاتی ہے اور پھر. اچھا آگے. انا ابن المدرس. انا بن المدرس, میں
टीचर का बेटा हूँ। अब इसके पार्ट कर लें। अना अना अनबनु, ये मुब्तदा है, अल मदरसे खबर है। तो आपने इसको फिर तोड़ दिया, अना को अलग करें, इसको मुब्तदा बनाएं और ये इनको तोड़े नहीं। ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? इब्नुल मुदर्रिसी। इब्नुल मुदर्रिसी ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है। हाँ, तो मुरक्कब को नहीं तोड़ते ना, बेचारा मुरक्कब बना है, कंपाउंड बना है, उसको आप क्यों तोड़ रहे हैं? जैसे इब्नु मन भी जो था वो आपका कंपाउंड बन रहा था, उसको नहीं तोड़ा आपने, उसको आपने खबर बना दिया, इसको मुब्तदा बना दिया। इसी तरह इसको आपने अन्ना को मुब्तदा बनाना है, इसको आपने खबर बना दिया। ठीक है, इस मुब्तदा के बाद खबर आती है, ठीक है, और खबर के बाद मुब्तदा आता है। खबर के बाद मुब्तदा, यहाँ खबर पहले आई थी, मुब्तदा बाद में आया था। आगे ऐनल कल्बु, कुत्ता कहाँ है? कल्बु कुत्ते कुछ कहते हैं ना, सही है ना? बिल्कुल सही है। और ये मैम ये क्वेश्चन का है, तो ये होगा खबर बनेगी और कल्बु ये मुब्तदा बनेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऐनल कल्बु ये क्या बनेगी? खबर, और ये मुब्तदा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन वाले वर्ड्स जो होते हैं ये हमेशा खबर बनाए जाते हैं, खबर, और यहाँ पे कल्बु ये मुब्तदा। हुआ तहत सयारती, ये इसमें क्या होगा? वो गाड़ी के नीचे है। वो गाड़ी के नीचे है। किसके? वो हुआ की ज़मीर किधर जा रही है, किसकी तरफ इशारा करी? ये हुआ की ज़मीर कुत्ते की तरफ जा रही है। हाँ, कल्ब की तरफ है। ठीक है, कल्ब उसकी तरफ है कि वो कहाँ है, तो हुआ तहत सयारती। अब इसमें मुब्तदा हुआ हो गया और खबर क्या होगी? खबर ये तहत सयारती। अब ये भी मुरक्कब है, इसको तोड़ना नहीं है, ये भी मुरक्कब इजाफी है। इसके नीचे जेर आ रहा है, ये जरी हालत में, और ये आपका नस्बी हालत में। ये हमेशा तहता फौका ऐसे ही रहता है, ये मंसूब ही रहता है। और भी आपने अमामा आपने पढ़ा है, ठीक है, तो उसपे जबर ही आती है हमेशा। तो इसको कहते हैं नस्बी हालत, इसको कहते हैं रफ़ई हालत। ठीक है, अभी आज मैंने पढ़ा है ना, इसको कहते हैं जरी हालत। तो इसमें जो होता है वो 3 तरह के लिबास चेंज करता है। ठीक है, एक तो वो दमा वाला होता है, एक जबर वाला होता है, 2 जबर या 1 जबर, और एक वो जेर वाला होता है। जब वो दमे वाले लिबास में होता है तो उसको कहते हैं कि वो रफ़ई हालत में है। जब वो 1 जबर या 2 जबर वाली हालत में होता है तो फिर वो उसको कहते हैं नस्बी हालत में है। और फिर जेर, 1 जेर या 2 जेर हो तो वो जरी हालत है। तो यहाँ पे जरी है, यहाँ भी जरी है, यहाँ पे रफ़ई है, यहाँ पे नस्बी है। अब्बास पेश वाले को आपने क्या कहा? रफ़ई हालत। रफ़ई हालत। आप लेट आई हो ना, अभी आप लेक्चर सुनना ना, फिर आपको समझ ना आई तो फिर अगली क्लास में सवाल कर लेना। ठीक है, सही है ना सना? जी मैम। तो जल्दी जी मैम, जी मैम। हर क्लास में टाइप करती हूँ कि बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम। जी जी जी। तो वो क्या मतलब होता है उसका? ऐसे ही फुजूल लिखती हूं वो मैं। संडे हस्बैंड घर पे रहते हैं ना, तो एक ना एक काम निकलता ही रहता है, मैं फिर भी बीच में बैठ जाती हूँ। चलें ठीक है, तो काम पहले कर लिया करें, थोड़ा सा जल्दी उठ जाया करें। मैंने आपकी 5 बजे क्लास लेनी होती है, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, मुझे पता है मेरे बीच में काम होंगे, मैं वो सारे करके फिर आपकी क्लास लेती हूँ। और कभी लेट हुई हूँ? ठीक है, एग्जैक्टली मैं 5 बजे क्लास नहीं मैम, कभी नहीं हुए आप मैम, टाइम से पहले ही रहते हो आप। और तो इंशाल्लाह कभी छुट्टी भी नहीं की। ठीक है जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आगे भी यही इरादा है। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक 7 मिनट और ले लेते हैं। कौन करेगा आगे नेक्स्ट? मैं आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज को कैसे करना है, फिर होमवर्क में कर लेना आप लोग। मुब्तदा और मुब्तदा क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। मैम ये पूछना चाह रही हैं कि मुब्तदा और खबर क्या होती है? मुब्तदा और खबर क्या होती है? अभी आप मुब्तदा और खबर, मुब्तदा जिससे जुमला स्टार्ट होता है उसको मुब्तदा कहते हैं। ठीक है, जुमला जब स्टार्ट होता है जिस नाउन से उसको मुब्तदा कहते हैं, और उसके आगे जितनी भी आती है वो खबर होती है। मैम वो तो समझ में आ गया था। हाँ हाँ, पर जैसे अपने सेंटेंस बनाया मन हासा, तो इसमें कौन सा मुब्तदा निकालेंगे ऐसा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मन जो है, जो क्वेश्चन के लिए आ रहा है उसको आप उसको खबर बोलेंगे। मन क्वेश्चन के लिए आ रहा है ना, ये कौन है, मन हाजा, ये क्या, ये क्या है तो नहीं कहेंगे ना, ये हम ये कौन है कहेंगे।
माँ हाजा हो तो ये क्या है, ठीक है ना, मन हाजा ये कौन है, तो मन जो होगा ये खबर होगी, इसमें खबर पहले आ जाएगी और मुब्तदा हाजा होगा, ठीक है। तो अगर हम कहें हाजा रजुलन, तो अब मुब्तदा खबर क्या होगा हाजा रजुलन में? हाजा मुब्तदा होगा और रजुलन होगा खबर। हाँ, लेकिन क्वेश्चन वाला जब वर्ड आएगा ना तो फिर उसमें आपका ये होगा कि वो क्वेश्चन वाला जो वर्ड है वो खबर बनाएंगे और फिर आगे वाले को मुब्तदा बनाएंगे, समझ आ गई? अब जैसे यहाँ पे ऐना आ रहा है ना, तो इसको आप खबर बनाएंगे, ठीक है, यस मैम। और आगे वाले को आप मुब्तदा बनाएंगे, समझ आ गई? चलिए यस मैम। चलिए ठीक है। अच्छा जी, अभी भैया की, अच्छा कौन करेगा, किसका हैंड रेज है? सुमैया तो हम कर लेते हैं। हाँ आप कर हम ले, भी कर चलिए लें। करने का। Make sentences by filling the blanks. कव्विन जुमलन मुफीदतन बिमल इल फरागी फीमा यली। अब ये इसका मीनिंग तो आपको नहीं आएगा। मेक सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अच्छा, ये जो जुमला बनाते हैं ना आप, जो जुमला ऐसे बनाते हैं, इसको जुमला मुफीदा भी कहते हैं, ठीक है। जुमला मुफीदा, मुफीदा का मतलब ये होता है कि कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि वो एक मीनिंग दे रहा होता है ना। जी मैम। तो एक होता है जैसे आप कहें कि रसूलुल्लाही या किताबुल्लाही या बैतुल्लाह या अल्लाह का घर, ये जुमला मुफीदा नहीं है, ठीक है। जुमला मुफीदा वो होता है जिसमें इस इंग्लिश में और है जो होता है वो उर्दू में एंड में आता है। जैसे ही इज गोइंग, वो जा रहा है, हाँ वो जा वो रहा खा रहा है लग रहा है, ठीक है ना। जी जी ये जी अल्लाह जी का घर है, तो जब है का तर्जुमा आएगा तो जुमला मुफीदा होगा, और अगर नहीं आएगा तो उसको फिर मुरक्कब कहते हैं, नाकिस, इनकम्प्लीट सेंटेंस। मुरक्कब नाकिस अगर लिख लें तो अच्छी बात है, उसमें नक्स होता है, कमी होती है उसमें, तो उसको तो मैम नाकिस। मेक सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये चलें करें। जुमला मुफीदा हुआ। ये अभी जुमला मुफीदा नहीं है, ये हाफ सेंटेंस है। या तो इसमें खबर दी हुई होगी या मुब्तदा दिया होगा, एक पार्ट दिया होगा, दूसरा आपने खुद बनाना है, जी, दूसरा आपने खुद लगा के उसको जुमले को मुफीदा बनाना है। चले बनाइए। ठीक है मैम। यहाँ पे एक वर्ड लगाएं ताकि ये कंप्लीट जुमला बन जाए। अलबैती मुगलकुन, बाब। वेरी गुड, वेरी गुड मैम। बाबुल बैती, बाबुल बैती, डरे नहीं, बाबुल बैती, ठीक है। मुगलकुन। अब ये देखें ये कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी है, इसमें आपने एक पेश लगाया मुदाफ पे, ठीक है जी मैम। और अलिफ लाम भी नहीं लगाया कि अल बाबू कर दे जी। अल बाबू करेंगी तो अल बैती हो जाएगा, तो मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा फिर। तो आपने बाबुल बैती, पर वो तो मैम रॉन्ग हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा फिर, ठीक है ना। रॉन्ग तो नहीं होगा, हो सकता है वो भी सही बन जाए, लेकिन आपने चूंकि यहाँ पे जेर लगी है ना, तो ये बता रही है कि ये मुदाफ इलैह है, तो आपने यहाँ मुदाफ लगाना है। तो मुगलकुन क्या बन जाएगा, बाबुल बैती मुगलकुन खबर बन जाएगी और ये मुब्तदा बन जाएगा। सही है, समझ आ गई? तो अब ये हाँ, अल बैती मुगलकुन ये इनकम्प्लीट सेंटेंस था, दो लफ्ज तो थे लेकिन कोई जुमला नहीं बन रहा था, मुफीदा नहीं बन रहा था। अब जब आपने बाबू लगाया, बाबुल बैती मुगलकुन, तो कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है। अब इसमें करें आईना डैश सैयारती, वेयर इज मैम, कोई नेम आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो नेम ही लाना है ना, मुदाफ लाना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बाब लाई है तो यहाँ पे आईना खालिदू, खालिदू सैयारती, गाड़ी का खालिद, ये तो कोई बात नहीं है। गाड़ी नहीं मैम, नहीं, गाड़ी की चाबी कर सकती हैं, वेयर इज द कार्स की मैम। आईना मिफ्ताहू, मिफ्ताहु सैयारती, मिफ्ताह पे क्या लगाएंगी, दो पेश या एक पेश? मैम एक पेश लगाएंगे, क्योंकि ये आपका मुदाफ है, मुदाफ है क्योंकि, और ये मुदाफिल है। मुदाफिल पे अल भी आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है। अच्छा, अब इसको करें मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। मैम इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, रसूलुल्लाह ही, ठीक है। मुरक्कब इजाफी बनाना है ना, रसूल है तो जी। जब भी आप देखें ना किसी नाउन के ऊपर एक पेश आ रही है,
ठीक है, तो यहाँ पे एक जी जबर आ रही है, एक ही हरकत आ रही है, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा, जी तनवीन भी नहीं आ रही, तो आगे मुदाफ इलैही लगाएंगे आप, ठीक है, जी 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 उसको मुदाफ ही बनाएंगे जुमले में, उसको मुदाफ इलैही का टर्म देंगे और आगे अल्लाह ही। आगे पढ़ी नंबर 5, नंबर 4 डैश ये वाला। डैश तबीबी बैदुन तबीबी डॉक्टर दूर बैदुन क्या है, होता है मैम? सिख दूर होता है अच्छा दूर 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 यस दूर है, दूर है। तबीब क्या होता है? डॉक्टर होता है। डॉक्टर अब का क्या दूर है? हाँ घर क्या या दूर फिर है? बैतू कर सकते हैं मैम। हाँ बैतू, तो पहले उर्दू में बना लें जी और इसको सवाल बैतू ना करें, ये बहुत आसान और प्यारी लैंग्वेज है, अल्लाह ताला का जी कलाम है, इसमें बैतुत तबीबी बैतू करीब है, तो ये आपका जेर लगा हुआ था इसलिए आपने यहाँ पे मुदाफ बनाया बैतू तबीबी। जी अच्छा आगे अल कुरानु, अल कुरानु किताबु, इसके आगे मुदाफ लग जाएगा। अल्लाही अल्लाह, अल्लाही अल्लाह मुदाफ है, नहीं अल्लाह मैं ही मुदाफ इलाही मुदाफ इलैही। अल कुरानु मुब्तदा है और किताबुल्लाही क्या, उसके बारे में खबर दी जा रही है, खबर है। ये अल्लाह किताब है। खदीजा तू, खदीजतु डैश हामिदिन खदीजतु खदीजा हामिद हामिद की क्या है, या तो बीवी होगी या फिर बेटी होगी, और क्या हो सकता है, बेटा तो हो नहीं सकता, तो क्या बेटी लगाए? कर लेते हैं। हाँ तो बेटी करें, बिंतु बिंतु हामिद, बिंतु गुड, बिंतु हामिद, सही है, आपने से लिखा भी नहीं, जरा टाइम ऊपर हो गया ना, चलिए। जी मैम। अच्छा उसके बाद अना डैश अल मुदर्रिसी, अना डैश अल मुदर्रिसी, अना मीन्स मैं, मैं बेटा हूँ मुदर्रिस या बेटी हूँ, कुछ भी लगाएं, अना दोनों के लिए इब्नु यूज हो सकता है इब्नु ना। मैम इब्नुल मुदर्रिसी, इब्नुल मुदर्रिस, बस यही ख्याल रखना है कि यहाँ पे तनवीन नहीं लानी, जी सब प्रैक्टिस आपको यही करा रहे हैं। इब्नुल जी मुदर्रिस जी जी डैश और अत्तालिबी मकसूरुन। अच्छा ये मुझे बताएं, ये कोई मुरक्कब स्टूडेंट बन सकता है आपस में, ये वाला कोई मुरक्कब बन सकता है, मुरक्कब तौसीफी या जारी या इजाफी? मकसूर ये मुदाफ और ये मुदाफ इलैह बना सकते हैं। मैम मकसूर का मतलब क्या होता है? मकसूर टूटा हुआ, मकसूर अच्छा हाँ तालिबी आपको नजर आ रहा है ये कोई मुरक्कब बन रहा है, जितने भी मुरक्कब हमने पढ़े हैं, मुरक्कब जारी पढ़ा है, मुरक्कब जारी की मिसाल दें जल्दी से। मैम फिल मुरक्कब हाँ दो फिल अल्फाज से बनता है ना, जी जी फिल बैती है ना, जी मिनल बैती, ये मुरक्कब जारी जिसमें एक हर्फ जा रहा है, मुरक्कब हमेशा दो अल्फाज से बनता है। अच्छा फिर अच्छा हमने अच्छा पढ़ा बैतु हामिदिन, अब ये कौन सा मुरक्कब है? बैतु हामिदिन, ये तो मुरक्कब इदाफी है। फिर हमने पढ़ा बैतुन जदीदुन, ये कौन सा है? जदीद मैम ये भी मैम ये तो तौसीफी है। ये तौसीफी है। तो इन ये तीन हमने मुरक्कब पढ़े हैं ना, तो इन तीनों में से बनता है कोई ये वाला जो मैंने अभी तालिबी? मैम ये फर्स्ट वन है, नहीं मैम फर्स्ट, सेकंड वन है, ये बैतु हामिदिन है ये अच्छा तो बैतु हामिद में तो वाला। यहाँ पर एक दम्मा आ रहा है, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा, यहाँ पे दो जेर आ रहे हैं, तो ये कैसे मैच हो रहा है इसके साथ, मैम मुझे बताएं। इसके पीछे कोई हर्फ जर हो सकता है जिसकी वजह से इसमें कसरा आ गया। कसरा तो आ गया, बट अलिफ लाम क्यों आ रहा है मुदाफ के ऊपर? तो अगर आप इसको फर्ज करें मुदाफ बना रही हैं तो इस पे अलिफ लाम क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए जी ना। नहीं आना चाहिए। हाँ तो ये मुदाफ नहीं बन सकता, तो जब ये मुदाफ नहीं बन सकता तो ये मुदाफ इलैह कैसे बन सकता है? जी मैम और वैसे भी दो पेश आ रहे हैं तो मुदाफ इलैह तो हो ही नहीं सकता, मुदाफ इलैह मजरूर होता है। मुरक्कब तौसीफी भी नहीं हो सकता क्योंकि बैलेंस नहीं ये है। भी नहीं बन सकता और ये भी नहीं बन सकता, तो फिर ये आपका कोई भी मुरक्कब नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा इसका जी मतलब है आपने इनको अलग अलग करना है, मकसूर को अलग कर देना है और किताब के साथ आपने यहाँ कोई मुरक्कब बनाना है जोड़ के। तो यहाँ पे जेर आ रही है तो कौन सा मुरक्कब बनाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे?
क्या चीज टूटी है? मैम स्टूडेंट वो की। मैम इसमें फिर वो मुरक्कब इदाफी बनेगा हाँ तो यहाँ बनाए पे। ना, इसमें आप स्टूडेंट की क्या मैम चीज टूटी हुई है? मैम कलमु कलमु तालिबिल। कलमु तालिबी हाँ, कलमु मकसूर। तालिबी मकसूरन। तो बस इस तरह करना होता है और कुछ नहीं करना। तो बाबू डैश मफ्तूहन, किसका दरवाजा खुला हुआ है? घर का भी खुला हो सकता है, मस्जिद का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है, मस्जिदी, गाड़ी का भी हो सकता है। बाबुल बाबू मस्जिदी। मस्जिदी मफ्तूहन। वेरी गुड। आगे बनाइए नंबर 10। खरजल मुदरिसु खरजल मुदर्रिसु मिन मुदीरी मुदीरी। मुदीर, खरजल मुदर्रिस खरजल मुदीर के घर से निकला। मिनल मिन, मुदीर का घर बनाए। मैम बैतू बैतू। तो मिन की वजह से क्या हो जाएगा? बैतू ही रहेगा। बैती हो जाएगा। हाँ मिन। अब आप इसको पढ़ के देखें जुमले को। खरजल मुदर्रिसु मिन बैतिल मुदीरी। हाँ, यहाँ पे अलिफ लाम नहीं लगाना। अगर अलिफ लाम लगा दिया तो ये फिर मुरक्कबे तौसीफी बन जाएगा। हमने मुरक्कबे इजाफी बनाना है तो अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, ठीक है? जी 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 मिन बैतिल मुदीरी। जी मैम। चलिए अभी कितने सेंटेंस देख लेती हूँ। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है? अच्छा, इसका एक जुमला बना लें। ये वाला जो है, ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्या चीज है? मैम हाउस है ना, घर है ना। तो घर का दरवाजा खुला है। खुला ही है ना, बंद तो नहीं है ना? नो मैम। तो बताइए, जुमला बनाइए। इसके सेंटेंस अलबैत वो घर, द डोर इज ओपन करेंगे ना? किसका डोर? किसका डोर? घर का डोर। तो घर का डोर खुला है। द डोर इज ओपन। मिफ्ताह बाबुल बैती बाबुल बैती मिफ्ताहुन मिफ्ताहु बैतुल सॉरी बाबुल बैती, गलत कर दिया मैंने। बाबुल बैती बैती, घर का दरवाजा। आगे क्या आएगा? कौन बता रहा है क्या आएगा? बाबुल बैती के बाद मिफ्ताहुन का मतलब होता है चाबी है। मफ्तूहुन। देखा, छोटी सी बच्ची ने बता दिया आपको। आप मिफ्ताहुन लगा रही थी ना। मिफ्ताहुन तो चाबी होती है। जी मैम, जी मैम। मफ्तूहुन खुला है। अच्छा, इसके बारे में बताइए। बाबुल मदरसती। बाबुल मदरसती ये भी ओपन है। मफ्तूहुन मदरसती मफ्तूहुन मदरसती। मदरसा में गोलता आती है, मुदरिस में नहीं आती। मदरसती, और ये मुज़क्कर मुन्नस होता है गोलता। स्कूल। बाबुल मदरसती मफ्तूहुन। ठीक है मैम। एक क्वेश्चन था जो माइंड में आ रहा है। हाँ चलें, जल्दी से कर लें, मेरे पास टाइम मैम नहीं ये है। एंड में हमने दम्मतैन क्यों लगाया है दोनों में? मफ्तूहुन ये खबर है ना, तो खबर में दमतैन नहीं आता है ना। अच्छा, खबर हमेशा जब मैम खबर में आएगी ना तो उस पे दमतैन आएगा और रफ़ई हालत में होगी वो। दो जबर दो जेर नहीं लगा सकते। मुदाफिल पे तो दो जेर या दो जबर लगाते हैं, दो जेर लगाते हैं ना। अच्छा अच्छा मैम, जब भी वन वर्ड से मैम की खबर होगी तो हमेशा उस पे ये दो पेश लगाएंगे, हम दम्मतैन लगाएंगे। अभी आपने गौर करना है, ठीक है? जब जो खबर है मकसूरुन, ठीक है ना? मकसूरुन खबर है ना? जी मैम, तो आपकी यस मैम। हाँ, तो रफ़ई हालत में होगी, जेर नहीं होगा। जेर तो मुदाफिल के लिए होता है। ये खबर नहीं है, ये हामिद खबर नहीं है, ये मुदाफिल है। जी मैम। इसके पीछे आप बैतु हामिदिन लगाएंगी ना, तो तब ये खबर बनेगा। ये तब खबर बनेगा, ठीक है? और यहाँ पर आपने मकसूरन पे पेश। जी बोलिए, कौन बोल रहा है? जल्दी से सवाल कर लें। मैम मैं कह रही हूँ जबर जेर और पेश को अरबी में क्या कहते हैं? जबर जेर पेश जो होती हैं ये हरकत होती हैं, ठीक है? इनके दो नाम होते हैं, ठीक है? इनको हरकत कहते हैं, जेर जबर पेश को। सही है? हरकत पता है ना क्या होती है? वॉवल्स। वॉवल्स
ٹھیک ہے, حرکات کہتے ہیں. زیر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. اور آج میں نے اعراب کا بھی نام لیا تھا. اگر یہ حرکات جو ہیں یہ لاسٹ لیٹر پہ آ جائیں زیر زبر پیش تو وہ اعراب کہلاتی ہیں. زیر زبر پیش جو ہوتا ہے اگر وہ لاسٹ لیٹر پہ آ رہا ہو, اگر وہ لاسٹ لیٹر پہ آ رہا ہو تو وہ اعراب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر لاسٹ لیٹر سے پہلے پہلے آ رہا ہو تو پھر اس کو حرکات کہتے ہیں. میں آپ مثال دیتی ہوں, جیسے یہاں پہ یہ القرآن لکھا ہوا ہے نا, تو اس میں حرکات کیا ہوں گی؟ یہ لاسٹ لیٹر سے پہلے پہلے جتنی بھی آ رہی ہیں یہ حرکات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, جیسے کتاب کو بھی دیکھ لیں تو یہ لاسٹ لیٹر ہے, اس کو چھوڑ دیں اور اس سے پہلے پہلے جو کاف نیچے زیر تا پہ زبر آ رہی ہے یہ حرکات ہے. یہ حرکات ہے. کلیئر کر لیں اپنے کانسیپٹ یہیں پہ. با بہت کے اوپر جو امپورٹنٹ, پیش ہے, نون کے اوپر جو پیش ہے یہ اعراب بولیں گے ان کو. با کے اوپر جو پیش ہے, نون کے اوپر پیش ہے, اس کو اعراب بولیں گے. اچھا میم, اگر اس کے بدلے میم دمت عین ہو تو وہ نہیں ہوگی اعراب؟ ایک پیش ہو یا دو پیش ہو, ایک زیر ہو یا ایک دو زیر ہو, یا وہ سب ہوگا جو بھی آ جائے. اوکے 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 میم. تنوین آ جائے یا ایک پیش آ جائے وہ سب اعراب ہوگا. کتابن ہوگا تب بھی رفعی حالت ہوگی. ٹھیک ہے, کتاب ہوگا تب بھی رفعی حالت ہوگی. تو 3 حالتیں میں نے بتائی ہیں. لیکچر دوبارہ سننا, نوٹس بنانا. رفعی, نصبی, نصب اور جر کیا ہوتے ہیں؟ جب زبر آتی ہے تو نصب ہوتا ہے, جب زیر آتی ہے لاسٹ لیٹر پہ تو زیر جر ہوتا ہے, جری حالت ہوتی ہے, اور جب پیش آتا ہے لاسٹ لیٹر پہ تو رفعی حالت ہوتی ہے. یہ رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے, یہ رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مفتوحن بھی رفعی حالت ہے, دو پیش بھی رفعی حالت ہے. بٹ المدیری کے نیچے کسرہ آ رہا ہے تو یہ جری حالت ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہم نے تحتا کے اوپر زبر پڑھی تھی تو وہ نصبی حالت ہے. تحتا اگر زبر آئے گی, ایک زبر یا دو زبر, تو وہ آپ کا کیا ہوگا؟ نصبی حالت ہوگا. تو یہ سب نوٹس اپنے اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے تبھی یاد ہوگا, ورنہ کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو اسٹوڈنٹ رہ گئے ان سے بھی ہم, باقی ماشاءاللہ سب کو ہی آتا ہے. جو نہیں آ رہے نا مائک پہ, ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو میم دمہ ہو یا دمتن اسے رفعی ہی بولیں گے. جی بولیے. اس کے بیٹی نے جو کویشچن پوچھا تھا کہ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں, تو ان کو فتح نصب جر بھی کہتے ہیں اور فتح دمہ کسرہ بھی کہتے ہیں. فتح دمہ کسرہ زیر زبر پیش, ہاں وہ بھی زیر زبر پیش بھی ان کو شاید پتا ہو, لیکن دمہ فتح کسرہ, دمہ فتح کسرہ, دمہ پہلے فتح بعد میں کسرہ ہے. اس سے یاد کریں گے نا تو جلدی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو دمہ فتح کسرہ, دمہ والی رفعی حالت, نصب والی اور جری والی. ہاں بولیں بولیں. میم کوئی بہت چھوٹی بچی ہے یہ 10 ایئرس اولڈ, میم لیکن پرسنلی کوسچن اس کے دیکھیں بڑوں والے سے بھی کچھ کوشچن. جی میم, یہ سو انٹیلیجنٹ ماشاءاللہ. میم یس, اتنی چھوٹی ایج میں اگر ایسے کوئی کوشچن کر رہا ہے اس کا مطلب سچ میں اسے سمجھ بھی آ رہا ہے, اور بالکل بھی آ رہا ہے, سمجھ بھی آ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. بچے اور آج وہ کل سمجھ بھی رہی ہیں, بہت کچھ کر بہت رہے ہیں. شارپ آپ کو مائنڈیڈ ہے نہیں کوئی. پتا آج کل کے بچے بڑے بریلینٹ ہیں, وہ دنیا دینی تعلیم اور دنیاوی دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ہمت اور حوصلہ اور دے, اور ان کے ماں باپ کو بھی دے تاکہ وہ ان کو اسی طرح سے جو ہے آگے کریں. جی 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 ٹھیک ہے, انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر کثیرا. خیر جی. صحت وانتم جزاکم اللہ خیر کثیرا.